So, Moji, can we start? Yeah, sure. Okay, great. So, first of all, very good morning to all of you. Uh, it's been a while that we have done our last webinar. I believe we have done in September, and now we are back again with our webinar series in the month of November. And I hope we all are done with our annual filing, if MCA is allowing. If not, then definitely we are still hustling, right? And same, we are also hustling at our office, but definitely sooner or later it will be completed, right? And my fingers are also crossed on it. But yes, today's topic is very much important. As the intent of this topic was very clear that we all know the valuation is there, right? We all know that it need to be done by the registered valuer, but still there is still a lot of clarity missing. That where are the areas where valuation is mandatory, right? So on this topic, I asked Mohitji, he is a seasoned professional and a valuer, to if he can give us an hour or so and give a brief understanding about the requirement of the valuation and the opportunities which company secretary can still explore, because it is still, I believe, just 20-25% explored by the professionals, and still 75% of the opportunities in this segment is still yet to be explored. So here we are today, and we will be discussing on opportunities for company secretaries as a registered valuer. And to take this topic further, we have Mohiji with us. Mohiji is a member of Institute of Company Secretaries of India. He is a chartered accountant. He is a cost accountant, and he's also a registered valuer, securities and financial assets with IBBI. Moiji has more than 18 years of experience in the accounting and financial domain. He has extensive experience across a wide spectrum of finance function, including system setup, planning, modeling, process automation, MIS reporting, valuation, and advisory. He has worked closely with promoters and management in setting up financial process and internal financial control to fill gaps in MIS reporting and compliance, thereby ensuring a smooth finance function in the organization. Previously, Mohiji has been associated with Power Grid Corporation of India, Jindal Stainless Steel, and HCL Infosystem as a part of their finance team. He has also served as finance controller of his startup ThinkLink. With his rich experience, Mohiji assists promoters and corporates in simplifying complex accounting and financial aspect of the business. He is also a rank holder. He has secured all over India 18th rank in cost management accountancy examination, and also holds a certificate in financial modeling. So, Moji, with your immense experience, we are looking forward to have a great insight on this very key, I will say, hot topic for the opportunities for company secretaries as a registered valuer. And yes, I welcome you on behalf of my members and on behalf of Chronicle. And yes, looking forward to have a very insightful session today. Over to you, Moji. Moji, you are unmute. Yeah, You need to unmute. sorry. Yeah. Yeah. Thank you, Abhinavji, for such a wonderful introduction. Uh, Good afternoon to everyone. Uh, I will not say it's a lovely day because AQI is too high still at Delhi. So we are now accustomed to it. So I will be going in English, and instead of doing it in a mechanical manner, I would like to discuss the experiences which I had with the valuation profession, and why this course is important. One part of the story. Another, what are the issues which we face while preparing the valuation. Second part of the. So PPT is just for reference, but my I will share the practical experiences which I have faced. So बेसिकली मैं थोड़ी सी अपनी लाइफ लॉन्ग जर्नी बताता हूँ. बेसिकली आई डिड सीएमए इन 2007 along with my graduation. I was preparing for CNCS, and मेरे दोस्तों ने बोला कि यार चलो एक गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं. पहला गवर्नमेंट एग्जाम दिया, एंड टचवुड वो क्लियर हो गया. एंड इट वाज 2010. आई वाज नॉट सी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. द स्टोरी वाज गुड. पावर ग्रिड का था, पैकेज वाज गुड. तो घर वाले ने बोला सीए ये तो करता रहना. तो जॉब ज्वाइन कर. सो आई ज्वाइन पावर ग्रिड, and I deferred my CA attempt. Along with my job, I did CA and CS. And as it is said that कि government में sector में काम नहीं था, but for Power Grid I was overburdened. प्राइवेट सेक्टर बहुत ल्यूक्रेटिव लगता था दूर से कि बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है, एक्सेप्शनल ग्रोथ होती है. तो आफ्टर वर्किंग विद पावर ग्रिड फॉर 2.5 years, एंड आई वाज पोस्टेड एट जम्मू. सो आई लेफ्ट माय जॉब एंड ज्वाइन जिंदल स्टेनलेस. लेकिन जो काफी बार जो बोला जाता है ना कि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं,
तो वो वाली बात थी कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में जो एक्सेप्शनल ग्रोथ आती है, इट इज नॉट दैट स्टोरी। हर हर जगह टाइम के साथ ही ग्रोथ आती है। तो then I worked with Jindal Stainless, SCL Infosystems, and along with SCL I was doing sideways consulting for startups। तो स्टार्टअप्स का कल्चर उस टाइम पे बूम पे आ रहा था, 2014-15 के आसपास काफी इंडिया में स्टोरी बिल्डअप होने लगी। एंड दिमाग में घुस गया था कि किसी स्टार्टअप को ज्वाइन करना है ग्रोथ के लिए। तो आई बिकेम ए फाइनेंस कंट्रोलर फॉर ए startup which was funded from a fund, and I worked with that startup, and December 16 I started my own practice as a CA। रफली अराउंड 2018 के आसपास आपका वैल्यूएशन का कोर्स स्टार्ट हुआ। एंड आई वाज फ्रॉम द बिगिनिंग बैचेस। इन 2019 आई डिड रजिस्टर्ड वैल्यूअर कोर्स। मैंने कोर्स तो कर लिया, एग्जाम भी पास कर लिया, पहले मैंने एनरोलमेंट नहीं करवाया था। मैंने कहा यार इसका काम कौन देगा और कहाँ से आएगा। ठीक है। अब क्या हुआ, अचानक से मेरे पास कहीं से एडहॉक क्वेरी आती है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूज वर वेरी लेस। बहुत बिगिनिंग में 2019 में तो बहुत कम थे। तो मेरे पास अचानक से एडहॉक क्वेरी आती है, सिंस आई वाज नॉट, इवन दो आई हैव पास द एग्जाम, बट आई हैव नॉट टेकन द सीओपी। तो आई हैड टू पास ऑन दैट लीड टू माय फेलो फ्रेंड। ठीक है, पहली ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार फिर दोबारा क्वेरी आई नेक्स्ट मंथ में, तो मेरे को फिर दोबारा पास ऑन करनी पड़ी अपनी फ्रेंड को। तो मैंने कहा यार मेंबरशिप अब ले लेते हैं, अपने आप क्वेरीज आ रही है, रेफरेंस अपने आप आ रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि फिर मेंबरशिप लेने में भी मुझे, क्योंकि आईबीपीआई के को फॉर्म सबमिशन करने के बाद काफी सारी क्वेरीज आई, वो सब रिसबमिशन किया, तो मुझे मेंबरशिप लेते लेते तकरीबन 2-3 महीने लग गए। तो दिस वाज माय जर्नी फ्रॉम वेयर द वैल्यूएशन जर्नी स्टार्टेड। नाउ कमिंग टू द वैल्यूएशन। सो वैल्यूएशन एंड प्राइस दो टर्म्स होती है। वी ऑफन मिसलीड बोथ द टर्म्स। प्राइस इज द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू विच वी पे फॉर दैट। द वैल्यू फॉर दैट प्राइस मे बी हायर और मे बी लेस। सपोज अगर हम, मैं एग्जांपल देता हूँ, हम एक डेजर्ट में बैठे हैं, ठीक है। तो पानी की बोतल की को हो सकता है वो 10 रुपए में दे रहा हो, लेकिन हमारे लिए उसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम, अगर हम एक ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे पानी बहुत है, ठीक है, जहाँ पे रेन वाटर है या कुछ भी है, तो वहां पे वो 10 रुपए दे रहा है, लेकिन पानी चूंकि वहां पे बहुत अवेलेबल है, तो वहां पे हम उसकी, हमारे लिए उसकी वैल्यू बहुत कम हो सकती है। तो वैल्यूएशन क्या है कि असेसमेंट है बेसिकली, कि उसकी टेंटेटिव वैल्यू कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर एसेट की। जबकि प्राइस क्या होता है, प्राइस इज एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो हम उसके लिए एक्चुअल पे कर रहे हैं। सपोज आप एक कार परचेज करते हो, ठीक है, किसी आपने कार परचेज की से फॉर 50 लाख। तो फॉर समवन द वैल्यू मे बी 60 लाख, और फॉर समवन द वैल्यू मे बी 40 लाख। वो उससे क्या बेनिफिट ड्राइव करता है एक पर्टिकुलर पर्सन, वो उसकी वैल्यू होती है। एंड द वैल्यू फॉर डिफरेंट पर्सन कैन बी डिफरेंट, क्योंकि हर कोई पर्सन सेम वैल्यू से ड्राइव नहीं कर सकता। तो वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करंट वर्थ और वैल्यू ऑफ एन एसेट। तो वैल्यूएशन क्या है कि उसकी करंट वर्थ जानना, कि उसकी एसेट की, एक पर्टिकुलर एसेट की, या उस कंपनी की, या उस इन्वेस्टमेंट की, या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, या फाइनेंशियल फैक्टर की क्या है, वो किस चीज पे डिपेंड करती है, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है कि वो हमें क्या बेनिफिट देगी, उससे हमें रेवेन्यू क्या मिलेगा, या प्रॉफिट क्या मिलेगा, या कैश फ्लोज क्या मिलेंगे। ठीक है। इसके अलावा वैल्यू बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है कि मार्केट कंडीशंस क्या है। सपोज अगर शेयर मार्केट अप जा रही है, तो डेफिनेटली अनलिस्टेड शेयर की वैल्यू भी अप जाएगी। क्यों? क्योंकि सेम ट्रेंड में चलेगी अनलिस्टेड की वैल्यू भी। अगर शेयर मार्केट डाउन जा रही है, तो लोग कहेंगे हम अनलिस्टेड में क्यों लगाएं। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट में ही आपको लिस्टेड में ही सस्ते शेयर अवेलेबल है। तो वैल्यूएशन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है कि रिस्क क्या है उस असेट में। बहुत सारी ऑयल रिगिंग्स होती हैं कि अ, हमने ऑयल रिग किया वहां पे, किस बेसिन में किया, तो वहां पे हमें कितना ऑयल मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर ऑयल नहीं निकला तो वो सारा जो डिगिंग है वो वेस्ट हो जाएगा, जो भी कॉस्ट लगेगी। तो रिस्क रिस्क फैक्टर भी डिटरमाइन करता है कि पर्टिकुलर सेट की वैल्यू क्या है। वैल्यूएशन में प्रोसेस क्या होता है, वैल्यूएशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि कंपनी कैसा पास्ट में परफॉर्म कर रही है। उसके बाद हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस देखते हैं,
जनरली हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि यार, स्टार्ट इन केस ऑफ स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स, कि पास्ट परफॉर्मेंस तो कुछ है नहीं क्योंकि नई नई कंपनी बनी है। लेकिन प्रोजेक्शंस, क्योंकि डिसरप्टिव इंडस्ट्री है, अगर हम बात करें बायजूस की, क्रेड की। बायजूस इवन दो फेल्ड, बट आई एम सेइंग इट बिफोर फेलियर। बायजूस हो गया आपका, क्रेड हो गया, अनक्रेड हो गया, या आपकी इस तरह की और भी बहुत सारी स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि जो भी लिस्टिंग हो रही है, जेप्टो हो गया। तो इवन दो उनकी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, प्रॉफिट स्ट्रांग नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शंस बहुत स्ट्रांग है। कैश फ्लोज, फ्यूचर कैश फ्लोज जो प्रोजेक्शन से बना रहे हैं वो बहुत स्ट्रांग है। इंडस्ट्री डिस्रप्टिव बोला जाता है। तो वैल्यूएशन में खाली पास्ट प्रोजेक्शंस या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल मैटर नहीं करते। फ्यूचर प्रोजेक्शंस क्या है, इन्वेस्टर्स का आउटलुक क्या है उन फ्यूचर प्रोजेक्शंस को लेके, वो मार्केट कितनी बड़ी है, इस चीज पे वैल्यूएशन डिपेंड करती है। इसके अलावा मार्केट असेसमेंट डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री ट्रेंड क्या है। आज के टाइम में जैसे हम बात करें, ईवी इंडस्ट्री ट्रेंड में चल रही है, एआई इंडस्ट्री ट्रेंड में चल रही है। तो इन्वेस्टर का फ्यूचर आउटलुक क्या है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेके। पीयर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट होती है। सपोज मेरी मेरी ही कंपनी परफॉर्म कर रही है 50% ग्रोथ रेट पे, जबकि पूरी इंडस्ट्री या मेरे जो कंपटीटर्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं 20% पे, तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा वैल्यूएशन मिलेगी क्योंकि आई एम परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर पीयर्स। इसके अलावा वैल्यूएशन अप्रोचेस होती हैं, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में, कि वैल्यूएशन के लिए क्या क्या अप्रोचेस होती हैं, किस किस केस में कौन कौन सी वैल्यूएशन अप्रोचेस लगती है। इसके बाद आता है कि वैल्यूएशन कहाँ पे मैटर करती है। तो जो सबसे ज्यादा हमारे पास वैल्यूएशन के केसेस आते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के केस में, क्योंकि कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी किया हुआ है वैल्यूएशंस को, कि जब भी आप प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स करेंगे, तो आपको कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन चाहिए ही चाहिए। और जब हम पैस 3 फाइल करते हैं, तो वहां पे हमें डिटेल्स भी देनी होती है रजिस्टर्ड वैल्यू की, कि आपने वेदर यू हैव ऑब्टेन्ड द वैल्यूएशन रिपोर्ट और नॉट। तो सबसे ज्यादा केसेस होते हैं हमारे पास प्राइवेट प्लेसमेंट के। इसके अलावा जब हम मर्जर एंड एक्विजिशंस कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं, लिक्विडेशन कर रहे हैं, या किसी भी तरह की रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, या आपका फीमा के केस में अगर हम हमारा कोई इन्वार्ड हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी हमें वैल्यूएशन चाहिए होती है। एंड ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो जो कि डे बाय डे जैसे आते रहते हैं। आपको ईसॉप्स के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, इंटेंजिबल के लिए चाहिए। अगर आप फंड्स, इंटेंजिबल के केस में इनकम टैक्स में बेसिकली वैल्यूएशन रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। अब वैल्यूएशन क्या है, बेसिकली गाइड करती है किसको, इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को, रेगुलेटर्स को। तो रेगुलेटर्स में आपका हो गया सेबी, कंपनी, एमसीए, देन आपका आरबीआई। तो वो उनको आइडिया देती है कि इस पर्टिकुलर कंपनी की वैल्यूएशन क्या है। इन्वेस्टर्स को कैसे गाइड करती है, बहुत बार क्या होता है कि आपका प्राइस एग्रीड नहीं हो पाता। पे अटेंशन, आई एम सेइंग द वर्ड प्राइस। मैं द कंपनी एंड द इन्वेस्टर इज सिटिंग ओवर द टेबल। कंपनी सेइंग कि मेरी कंपनी की वैल्यूएशन 400 करोड़ है, इन्वेस्टर इज सेइंग मैं तो 200 करोड़ की वैल्यूएशन प्राइस, तो 200 मेरे अकॉर्डिंग तो 200 करोड़ है। तो दे आर नॉट कमिंग टू ए सिंगल पॉइंट कि किस प्राइस पे अग्री करें। तो उस केस में क्या होता है कि दे सम ए लॉट ऑफ टाइम दे एग्री कि चलो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू से वैल्यूएशन करवा लेते हैं, एंड लेट अस ट्राई टू अग्री ऑन दैट। तो उस केस में भी बहुत बार वैल्यूएशन एज ए गाइडेंस काम करती है इन्वेस्टर्स को। लेंडर्स बेसिकली बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स प्लेज रख के लोन लेते हैं। तो उस केस में बैंक्स आस्क फॉर दीज काइंड ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम ए इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। किस लिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूएशन, क्योंकि जब ये गाइडलाइंस नहीं आई थी, जब रजिस्टर्ड वैल्यू का कंसेप्ट नहीं था, उससे पहले बेसिकली इनकम टैक्स में सीएस वर अलाउड टू, सीएस एंड मर्चेंट बैंकर्स वर अलाउड टू इशू द वैल्यूएशन रिपोर्ट। लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, जैसे हम लोग भी वैल्यूएशंस लेते थे, तो एक सिंगल पेजर या 2 पेजर रिपोर्ट बन जाती थी, जिसमें प्राइस सिर्फ लिख दिया जाता था एडॉक, और उसकी वर्किंग कहीं पे डिफाइन नहीं होती थी। तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, और सिर्फ एडॉक बेसिस पे वैल्यूएशन हो जाती थी। इट वाज जस्ट लाइक ए स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट। तो सिंस इंडिया इज ग्रोइंग, स्टार्टअप कल्चर इज ग्रोइंग, अभी तो एसएमई लिस्टिंग का बॉम्बार्डेड बहुत सारी हो रही हैं। तो सिंस इकोनॉमी इज ग्रोइंग, तो इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है, ताकि बहुत सारे जो ग्रे एरियाज थे, बुक एंट्रीज होती थी या फंड रूटिंग होता था, उन सबको कंट्रोल किया जा सके और एक यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके।
एक एरिया, अगर देखें, मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे किन किन सिचुएशंस में यूज होती है। बिजनेस सेल एंड एक्विजिशंस में यूज होती है, मर्जर डीमर्जर, ठीक है, स्लम्प सेल, इन्वेस्टमेंट एंड फंड रेजिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट, बेसिकली मर्जर। देन आपका टैक्सेशन, लिटिगेशन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हमारे पास बहुत बार ऐसा भी आता है कि कोई प्रमोटर्स के बीच में झगड़ा हो गया, पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया, द मैटर हैज वेंट टू कोर्ट। तो उस केस में क्या होता है कि कोर्ट मेंशंस देम दे आर नॉट कमिंग टू एग्रीमेंट कि हाँ क्या वैल्यू पे हम आपस में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करें। तो उसमें कोर्ट बोल देते कि चलो आप एक इंडिपेंडेंट वैल्यू से वैल्यूएशन रिपोर्ट ले आइए। इन केसों में हमें बहुत ज्यादा अटेंशन ध्यान रखनी पड़ती है कि कोर्ट ने उनको क्या डायरेक्शंस दिया, क्या पिटीशन फाइल हुई है, सो दैट एज ए वैल्यूअर वी कैन सेफ गार्ड आवर सेल्फ कि जो भी हम वैल्यूएशन रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो हमारी लाइबिलिटी न बन जाए, क्योंकि इन केसों में हमें कभी कोर्ट के सामने भी प्रेजेंट हो जाना पड़ता है। देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड कंप्लाइंस। हम फाइनेंशियल्स बनाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग और इंड के अकॉर्डिंग। तो इंड का में जो सारा कंसेप्ट है वो फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है। और बहुत सारी एसेट, जैसे आपका इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज हो गया, या और भी बहुत सारी एसेट हैं जो कि आपको फेयर वैल्यू पे मेंशन करनी पड़ती है ईयर एंड में। तो उस केसेस में भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट ईयर एंड में देनी पड़ती है। तो वैल्यूएशन प्रोफेशन जब ये नहीं आया था उससे पहले क्या प्रॉब्लम थी कि कोई यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क ही नहीं था। वैल्यूएशन जस्ट वर लाइक ए 2 पेज स्टेटमेंट, एंड स्टैंपिंग, इट वाज जस्ट लाइक ए स्टैंपिंग डॉक्यूमेंट। एक जस्ट फिगर हार्ड कोटेड कर दी जाती थी वहां पे। आउटकम, सिंस देयर वाज नो स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू बी फॉलोड कि क्या करें क्या ना करें, तो स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था। आउटकम इनकंसिस्टेंट थे, और स्टेक होल्डर को अनसर्टेनिटी रहती थी कि ये किस बेसिस पे की गई है, क्योंकि वैल्यूएशन इज अ सब्जेक्टिव थिंग। फिर सुपरविजन के लिए कोई अथॉरिटी थी ही नहीं उस टाइम पे भी। अ, और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सिंस देयर वाज नो सुपरवाइजिंग अथॉरिटी, देयर वाज नो अकाउंटेबिलिटी, तो इन्वेस्टर के राइट्स भी प्रोटेक्ट नहीं हो पाते थे। दिस वाज बिफोर द वैल्यूएशन प्रोफेशन केम इन 2017। देन जो वैल्यूएशन का जो रोड मैप रहा है इंडिया में, जे रानी कमेटी फॉर्म हुई कंपनीज एक्ट रिफॉर्म करने के लिए। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि वैल्यूएशन प्रोफेशन रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की जाए। देन बिल इंट्रोड्यूस हुआ 2008 में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का। 2013 में कंपनीज एक्ट नोटिफाई हुआ और उसमें एक सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया 247, जो कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर के बारे में बात करता है। देन अक्टूबर 18 2017 को एमसीए ने ऑफिशियली रजिस्टर्ड वैल्यू प्रोफेशन को इंट्रोड्यूस किया और पावर वेस्ट कर दी आईबीबीआई के साथ में। दीज पावर्स आर टेम्पररी विद द आईबीबीआई। जब तक ये बिल एक्ट का शेप नहीं ले लेता, देर इज अ सेपरेट अथॉरिटी विच विल सुपरवाइज द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। अब वो कब एक्ट पास होता है वी कैन नॉट से, क्योंकि ऑलरेडी वी आर अराउंड रफली अराउंड 8 years since the since these rules have been notified, but we are not sure when that separate authority will be introduced, when the act will be passed. We are not sure at this point of time. रजिस्टर्ड वैल्यूअर 2021 को 4300 थे, ठीक है। तो लेकिन ये अक्रॉस द ऑल द कैटेगरीज है, खाली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में नहीं है। ये सारे की सारी कैटेगरी में, जितनी भी कैटेगरी होती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, वो वी विल डिस्कस द कैटेगरीज इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। देयर वर 4300 registered valuers, and I will share as on date situation, exact as on date situation as well. तो बेसिकली जे ईरानी कमेटी ने बोला कि देयर शुड बी ए वैल्यूएशन प्रोफेशन, देयर शुड बी ए प्रोफेशन, सेपरेट वैल्यूएशन प्रोफेशन विच शुड बी रेगुलेटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड, एंड द फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यूएशन शुड बी स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। कंपनीज बिल 2008 आया जिसने रजिस्टर्ड वैल्यू का कंसेप्ट की बात की, और सेक्शन 218 ने बात की कि वैल्यूएशन को, जो कि वैल्यूएशन है वो रजिस्टर्ड वैल्यू के द्वारा की जाए, एंड या तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड उसको अपॉइंट करे, जो कि हमारा 247 ने भी बोला हुआ है कि द रजिस्टर्ड वैल्यू नीड्स टू बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर 2013 में एक नया कंपनीज एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, एमसीए ने नोटिफाई किया तो अक्टूबर 18 2017 को।
सेक्शन 247 कंपनीज एक्ट में था, जिसने नोटिफिकेशन ने बोला कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर इज अ सेपरेट प्रोफेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिक्योरिटीज एसेट एंड लायबिलिटीज टू बी डन बाय द क्वालिफाइड रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। इससे पहले कोई क्लैरिटी नहीं थी कि कौन वैल्यूएशन करेगा कौन नहीं करेगा, खाली सिर्फ आपका इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइन था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड आपका मर्चेंट बैंकर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु हैव मोर देन 10 years of experience. दिस वाज अर्लियर। तो अक्टूबर 23 2017 को जो सेक्शन 247 के अंदर जो पावर्स हैं वो डेलीगेट कर दी गई आईबीपीआई को टू मॉनिटर द दिस प्रोफेशन। अब बात करते हैं लैंडस्केप की कि आज 2025 में क्या क्या है। देखिए, वैल्यूएशन में आज की डेट में जितनी डिमांड है, ठीक है, उतने रजिस्टर्ड वैल्यू पूरे इंडिया में नहीं है। डिमांड ज्यादा है। आई एम सीइंग नॉलेजेबल रजिस्टर्ड वैल्यूअर, क्योंकि दे आर कॉम्प्लेक्स situations arising because of the business frameworks. There are different kind of instruments, जिसका मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा कि क्या क्यों इतने नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूज, डिमांड ज्यादा क्यों है और सप्लाई कम क्यों है। तो आज की डेट में आईबीसी में आपको रजिस्टर्ड वैल्यू की जरूरत पड़ती है। आईबीसी में तो बिना रजिस्टर्ड वैल्यू के काम ही नहीं हो सकता, क्योंकि लिक्विडेशन वैल्यू ड्राइव करनी होती है दो रजिस्टर्ड वैल्यू से। फेमा में मोस्टली जितने भी एफडीआई केसेस हैं, ठीक है, उसमें हर किसी केस में जब आप एफसीजीपीआर फाइल करते हैं, एफसीटीआरएस फाइल करते हैं, तो आपको रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यूअर की जरूरत पड़ती है। सेबी के ज्यादातर कंप्लाइंस में उन्होंने एएफ में लिख दिया रजिस्टर्ड वैल्यू, पहले मर्चेंट बैंकर लिखा हुआ था। एएफ की जो वैल्यूएशन है उसके लिए रजिस्टर्ड वैल्यू को नोटिफाई कर दिया गया था 1.5 साल पहले तकरीबन। इनकम टैक्स एक्ट में अभी रजिस्टर्ड वैल्यूअर वर्ड नहीं आया है। इनकम टैक्स में एक्ट में आज भी आपका मर्चेंट बैंकर ही चल रहा है। और सिंस इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप का कल्चर चल रहा है, अ, आपका एसएमई आईपीओ आ रहे हैं, तो इसलिए वैल्यूएशन प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ती जा रही है। आज की डेट में 6,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वैल्यू है। वैल्यूएशन की तीन कैटेगरीज हैं आपकी: सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट, जो कि हम एज ए सीएस प्रोफेशन ड्राइव करते हैं; लैंडेड बिल्डिंग, जो कि आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट करते हैं; प्लांट एंड मशीनरी, जो कि चार्टर्ड इंजीनियर करते हैं। तो सारी कैटेगरी में मिला के 6,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वैल्यू है। और इसमें सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग में, उसके बाद आपका सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट में, और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी में। अब जो ये पूरा फ्रेमवर्क है, इसमें कंपनीज एक्ट में आईबीपीआई को डिसाइड किया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को डिसाइड किया गया मॉनिटरिंग अथॉरिटी। ये होगी आपकी टॉप नॉच अथॉरिटी। जो वैल्यूएशन करते हैं वो है रजिस्टर्ड वैल्यूअर। अब इनके बीच में जो एक एजेंसी है उसको बोलते हैं आरवीओ, रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी पूरे इंडिया में 14 से ज्यादा आरवीओज हैं, ठीक है। आरवीओ और आरवी दो अलग अलग टर्म्स है, पहले हम फोकस करते हैं आरवीओ पे। आरवीओ इज द मॉनिटरिंग अथॉरिटी बिटवीन आईबीबीआई एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। तो आरबीओ क्या का काम क्या है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको उनको रजिस्टर करना, प्लस उनकी मॉनिटरिंग करना। सो इट एक्ट्स एज ए मीडिएटर बिटवीन आईबीबीआई एंड रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो आपकी अगर आरबीओ की बात करें तो आईसीएसआई एक आरबीओ है, आईसीएमएआई एक आरबीओ है, आईसीएआई आरबीओ है, इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यूअर्स एक आरबीओ है, दिव्य ज्योति एक आरबीओ है। और ये मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप सीएस के मेंबर हो तो आपको सीएस की आरबीओ से ही आपको कोर्स करना है। आप फ्री हो, किसी भी आरबीओ से आप कोर्स कर सकते हो, उसके पास रजिस्टर कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आरबीओ रजिस्टर हुई थी 2018 में रजिस्टर हुई थी, आरबीओ स्टेट मैनेजर एंड अप्रेजर्स फाउंडर्स। और आरबीओ जो रजिस्टर होती हैं वो एज ए सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर होती हैं। आरबीआई का कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करूंगा अभी। ये सब हमने डिस्कस किया कि करंट वैल्यूएशन लैंडस्केप क्या है। अब बात आती है कि जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो आपने कोर्स पास कर लिया, ठीक है। तो आप जाएंगे कोर्स करने के बाद अपने आरबीओ के पास,
वहां पे फॉर्म फिल करेंगे और वो फॉर्म आरबीओ अप्रूव करके आईबीबीआई की अप्रूवल के लिए पास जाएगा। आपने सीओपी ले ली। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एज एन इंडिविजुअल रजिस्टर्ड वैल्यू प्रैक्टिस करें, या एक सेपरेट एंटिटी बना सकते हैं। दैट सेपरेट एंटिटी कैन बी ए एलएलपी और एक कंपनी। इट कैन बी एन ओपीसी एज वेल। इट इज नॉट मैंडेटरी कि जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड ही हो। एक पर्सन ने ओपीसी भी बना रखी है। जब आप इसको स्ट्रक्चर में ले जाते हैं कंपनी के एलएलपी के स्ट्रक्चर में, तो उसको बोलते हैं आरवीई, रजिस्टर्ड वैल्यू एंटिटी। बेसिकली रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यू और एंटिटी क्यों बनाई जाती है? बहुत सारे असाइनमेंट में ऐसा होता है, जो बड़े बड़े आईबीबीए के असाइनमेंट है जहाँ पे लिक्विडेशन के असाइनमेंट्स हैं, तो वहां पे क्या है कि तीनों क्लास के वैल्यू की जरूरत पड़ती है। सो आपको उसके इसमें प्लांटर मशीनरी का वैल्यू भी चाहिए, लैंड बिल्डिंग का भी चाहिए, सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट का भी चाहिए। या आपको बड़े असाइनमेंट करने हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकते, आपको एक टीम चाहिए, तो सेम सेम क्लास में भी आपको मल्टीपल लोग चाहिए। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, आपस में जुड़ के एक रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यू और एंटिटी बना लेते हैं। और जैसे हम एज ए इंडिविजुअल रजिस्टर्ड वैल्यू और रजिस्टर करते हैं, ऐसे ही आरबीई का रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें आरबीओ के पास जाना पड़ता है। पहले आरबीओ अप्रूव करता है और उसको आईबीबीआई के पास भेज देता है। तो यू कैन प्रैक्टिस आइदर एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर और एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंटिटी। लेकिन रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंटिटी रन करने में चैलेंज क्या आता है कि सबसे पहले तो आपको सेम काइंड ऑफ पार्टनर ढूंढना है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। जैसे हम सीएस फर्म करते हैं, रन करते हैं, या सीए फर्म रन करते हैं, तो आपस में ट्यूनिंग बैठनी बहुत जरूरी है। तो आपको एक पार्टनर ढूंढना है कि वेदर वो पार्टनर आपको मिल पाता है या नहीं मिल पाता, तभी आप आरबीआई रन करने के बारे में सोचते हैं या रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक तो हुआ रजिस्टर्ड वैल्यू के बारे में। अब वैल्यूएशन जो है, हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसका मल्टीपल तरीके से। वैल्यूएशन मल्टीपल तरीके से होती है, मल्टीपल कारणों से होती है। वैल्यूएशन पर्पस के बेस पे होती है, असेट के बेस पे होती है, और अप्रोचेस वैल्यूएशन की अलग अलग है। तो पर्पस के बेस पे क्या होती है, बेसिकली आपका रेगुलेटरी है या ट्रांजैक्शनल है। देखिए, वैल्यूएशन रेगुलेटरी जहां पे डिफाइन किया गया कि आपको वैल्यूएशन चाहिए ही चाहिए। जैसे अब कंपनीज एक्ट में मैंने बताया कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए मैंडेटरी है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के लिए मैंडेटरी है कि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए ही चाहिए। तो दैट इज बाय स्टैच्यू। तो दैट इज ए रेगुलेटरी। FEMA में जब हम एफडीआई ले रहे हैं, इनबाउंड हो रहा है या शेयर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट एफसी जीपीआर या एफसीटीआर फाइल करते हुए लगाना है, वरना वो पास थ्रू ही नहीं होगा। तो दैट इज रेगुलेटरी। ऐसे ही जब हम आईपीओस में जा रहे हैं तो मर्चेंट बैंकर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाती है। तो दैट इज ए रेगुलेटरी, जहां पे भी किसी भी स्टैच्यू में डिफाइन कर दिया गया है कि आपको वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑब्टेन करनी है, दैट इज ए रेगुलेटरी। ट्रांजैक्शनल क्या हुआ कि सपोज मैं और एक इन्वेस्टर और एक इन्वेस्टी ओवर द टेबल बैठे हैं, लेकिन वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं वैल्यूएशन कितनी होगी, या कोर्ट में डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट सॉरी, दो पार्टनर्स का डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट में चले गए और वो एग्री नहीं कर पा रहे हैं वैल्यूएशन क्या होगी। तो उस केसेस में वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाती है। बेसिकली कहीं पे एक्ट में डिफाइंड नहीं है, कहीं पे लॉ में डिफाइंड नहीं है, बट सिंस हम कहीं पे नेगोशिएट नहीं कर पा रहे, वो ट्रांजेक्शन को क्लोज नहीं कर पा रहे कि उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको बोलते हैं ट्रांजेक्शनल नेचर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जैसे मैंने बताया आपको कि ईसॉप इंड ईयर्स की बात करते हैं, जब बैलेंस शीट की बात करते हैं तो फेयर वैल्यू का कंसेप्ट है। तो जो असेट्स हैं वो बैलेंस शीट में फेयर वैल्यू पे दिखानी होती है। अगर हमारी सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट है, एसोसिएट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है, या हमें ईसॉप्स के लिए स्पेसिफिकली ईसॉप्स का हमारे हमें प्रोविजन बुक करना होता है फाइनेंशियल्स में, एज पर इंड एएस और एज पर गाइडेंस नोट। तो उस केसेस में भी हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए वैल्यूएशन करनी पड़ती है। इसके अलावा जो असेट टाइप है, जो हमें असेट की टाइप के बेस पे होता है, लैंडेड बिल्डिंग का वैल्यूएशन होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंस्ट्रूमेंट्स का वैल्यूएशन होता है, प्लांट एंड मशीनरी। इसमें इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कहीं पे डिफाइन नहीं है, और ये ग्रे एरिया हमेशा ही रहा है। जैसे आपका गोल्ड की वैल्यूएशन हो गया, लाइव स्टॉक की वैल्यूएशन हो गया। आईबीबीआई ने सिर्फ तीन कैटेगरी बनाई है: लैंडेड बिल्डिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट, प्लांट एंड मशीनरी। इसमें खास तौर पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये नया नया एक्ट आया था तो कुछ कुछ लोगों ने जैसे अगर वो रजिस्टर्ड है सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में, तो उन्होंने लैंडेड बिल्डिंग की वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू कर दी गई थी। तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी हुआ,
डिसिप्लिनरी, और आईबीआई बीबीआई की सॉरी आरबीओ की तरफ से बार बार और आरबीआई की तरफ से भी बार बार नोटिफिकेशन आते रहते थे कि प्लीज डू नॉट बार्ज इनटू द डोमेन ऑफ अदर 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 वैल्यूएशंस वेयर यू आर नॉट रजिस्टर्ड। तो हमें हमें वैल्यूएशन करते हुए बड़ा ध्यान रखना है कि जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम दूसरी एसेट की वैल्यूएशन पे कोई कमेंट ना करें। इसके बाद अप्रोचेज होती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन की अप्रोचेज है असेट अप्रोच, मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच। वैल्यूएशन कैसे हम करते हैं, तो असेट अप्रोच की बात करते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्टी आती है हमें क्लाइंट की साइड से, इवन प्रोफेशनल की साइड से, कि आपने ये अप्रोच क्यों नहीं लगाई, आपने ये अप्रोच क्यों लगाई। कल ही मुझे एक क्लाइंट का फोन आया, उसने बोला कि मुझे मर्जर करना है। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, आई आस्क्ड फ्यू क्वेश्चंस की वेदर कंपनी इज रनिंग और नॉट, कोई कंपनी में बिजनेस है या नहीं है। तो ही मेंशन कि आप एक काम करिए, एनएवी पे वैल्यूएशन कर दीजिए। तो मैंने कहा कि वेदर द कंपनी इज लिक्विडेटिंग, ही मेंशन नो। तो जब हम असेट अप्रोच की बात करते हैं, असेट अप्रोच क्या होता है बेसिकली, इफ आई टॉक इन लेमन लैंग्वेज, तो असेट अप्रोच कहती है कि आप इंडिविजुअल जो भी बैलेंस शीट्स में असेट्स हैं उसकी एक वैल्यू निकाल लीजिए। दैट वैल्यू कैन बी ए लिक्विडेशन वैल्यू और द बुक वैल्यू और द रियलाइजेबल वैल्यू, और उन सबको जोड़ लीजिए, एड ऑन कर लीजिए, और उसमें से जो जो लाइबिलिटीज हैं वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जो भी किसी को पैसा देना है उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो असेट अप्रोच सिंपली कहती है कि जो भी असेट की आइदर इट इज ए रियलाइजेबल वैल्यू, बुक वैल्यू और द लिक्विडेशन वैल्यू, you may add on those values, subtract the liabilities, and whatever is left after subtracting those liabilities, that will be the value of your business or that particular asset. लेकिन asset approach हर जगह नहीं लगाई जा सकती। हमें हमारा जो गाइडेंस देता है, जैसे सेक्रेटरी स्टैंडर्ड है हमारे सीएस में, ऐसे ही वैल्यूएशन में इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स हैं। इंडिया में सेपरेट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड आईबीबीआई ने नहीं बनाए हैं अभी आज तक। उन्होंने गाइडलाइंस आईबीबीआई केसेस में दी हुई है कि किस तरह से करना है, बट देर आर नो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। आईसीएआई ने, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, जो कि सिर्फ उस आरबीओ में जो रजिस्टर्ड है, आईसीएआई आरबीओ, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आरबीओ में जो रजिस्टर्ड है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। बाकी किसी आरबीओ ने सेपरेट अपने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड नहीं बनाए हुए हैं। वो सारे जितने भी आरबीओ हैं उनके लिए उनको फॉलो करना है इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कहता है कि आप असेट अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच स्पेसिफिकली हर जगह फॉलो नहीं कर सकते। आप कॉस्ट अप्रोच से फॉलो कर सकते हो उन केसेस में जहां पे कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पे हम उसकी प्रोजेक्शन ही डिटरमाइन कर सकते हैं कि बिजनेस कैसे होगा। सिर्फ आप उन केसों में कर सकते हो, या कंपनी इज गोइंग इनटू द लिक्विडेशन या डिस्ट्रेस सेल, तो आप उस केस में असेट अप्रोच फॉलो कर सकते हो। ये बहुत बड़ा इशू रहता है क्योंकि अभी एक ट्रांसफर का शेयर ट्रांसफर का केस आया जहां पे मुझे बोला गया कि आप एक काम करिए, आप इसका असेट अप्रोच पे कर दीजिए। तो असेट अप्रोच बड़ा स्पेसिफिकली लगता है जहां पे आप कंपनी आपकी कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, जहां पे हम उसके प्रोजेक्शंस डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा असेट अप्रोच या कॉस्ट अप्रोच वहां पे कहीं और नहीं लग सकता अनलेस इट इज डिफाइंड बाय द स्टैच्यूट। अगर किसी लॉ ने बोला है कि आपको इस तरह से वैल्यूएशन करनी है, तो वैल्यूएशन स्टैंडर्ड प्रिवेल नहीं करते, आपका स्टैच्यूट प्रिवेल करेगा हमेशा। हमेशा ये है कि आपके जो एक्ट में जो डिफाइंड है, कोई मैथोलॉजी प्रोसीजर या जो भी है उस एक्ट में जो डिफाइन है वो प्रोसीजर फॉलो पहले होगा, उसके बाद वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कम सेकेंड। बट अगर कहीं पे एक्ट में डिफाइन नहीं है तो आपको इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, इन केस यू आर नॉट ए मेंबर ऑफ आईसीएआई आरबीओ। अगर आईसीए आरबीओ के मेंबर हैं तो आईसीए आरबीओ ने अपने वैल्यूएशन स्टैंडर्ड डिफाइन किए हुए हैं। इसके बाद मार्केट अप्रोच आती है। मार्केट अप्रोच क्या कहती है? मार्केट अप्रोच कहती है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल, आपको होंडा सिटी कार लेनी है। ठीक है, तो मार्केट अप्रोच क्या कहती है कि आप कंपेयर करोगे होंडा सिटी के प्राइस दूसरी कारों के साथ में, या आपको फोन लेना है सैमसंग का, तो आप क्या करोगे, जनरली कंपेयर करते हो कि इस फोन के क्या फीचर है और बाकी अदर फोन के क्या फीचर है और उसके प्राइस में क्या डिफरेंट है।
तो मार्केट अप्रोच में दो मेथड होते हैं, कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड और कंपेरेबल कंपनी मेथड। कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड क्या कहता है कि चलो, अगर क्या कहते हैं, जोमेटो और स्विगी का एग्जांपल लेते हैं कि जोमेटो इज एन ओल्ड कंपनी, स्विगी इज ए न्यू कंपनी। तो जोमेटो में ऑलरेडी फंडिंग दे चुकी है, स्विगी स्विगी न्यू न्यू स्विगी थोड़ा न्यू है, स्विगी का इन्वेस्टर आया, स्विगी का इन्वेस्टर और स्विगी के बीच में नेगोशिएशन हो रहा है। तो स्विगी वाले क्या बोलेंगे कि जोमेटो की रेवेन्यू इतना है, इतना उसका लॉसेस है, एंड इसकी फंडिंग इतने मल्टीपल पे हुई है, से 3 टाइम्स और 4 टाइम्स ऑफ रेवेन्यू मल्टीपल। तो तो हमारा रेवेन्यू इतना है, तो आप भी सेम मल्टीपल फॉलो करिए। तो इसको बोलते हैं कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड, जहां पे सेम ट्रांजैक्शन के बेस पे जो और मार्केट में हुई है, आप अपना वैल्यू डिटरमाइन कर रहे हो। दूसरा होता है कंपेरेबल कंपनी मेथड या कंपेरेबल पीयर्स मेथड। तो आप क्या करोगे, आप इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है या दूसरी जो अनलिस्टेड कंपनी जिनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल है, आप उनको पिक करोगे, उनके नंबर्स देखोगे क्या है, उनका रेवेन्यू कितना है, उनका ग्रोथ कितना है, उनका एबिटा कितना है, और अपनी कंपनी का सेम प्रपोर्शनल करके उसकी वैल्यू डिटरमाइन करोगे। तो मार्केट अप्रोच कहती है कि आप देखिए कि आपके पास दूसरी पानी की बोतल कितने की है, हमारी पानी की बोतल में क्या फीचर्स हैं, क्या बेटर है नहीं है। तो उस तरह से हम, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में भी अपनी चीजों को कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं रोजमर्रा की लाइफ में, तो उसी तरह से हम मार्केट अप्रोच फॉलो करेंगे। इनकम अप्रोच, इनकम अप्रोच कहती है कि आप ये देखिए, इनकम अप्रोच में मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं, उसमें फ्री कैश फ्लो भी होता है, कैश फ्लो भी होता है, आपका पैट भी होता है। तो दे आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस विच कैन बी फॉलोड। तो इनकम अप्रोच में आप सिंपली अगर इसको नक्शे में बोले तो ये देखा जाएगा कि आपकी असेट फ्यूचर में क्या गेन देगी। हम क्या क्या हम इसमें क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो हमारी फ्यूचर में इनकम आनी है, वो से एक असेट है हमारे पास। अ, जैसे हम इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसको आप कैब रेंटल के बिजनेस से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लोग क्या करते हैं कि हमें हर महीने किराया जो रेंटल आना है, वो 10,000 रुपये आना है, ठीक है, और से साल का 1,20,000 हो गया, और ये आता रहेगा 6 लाख रुपए 5 साल में। लेकिन सिंस पैसा डेप्रिशिएट होता है, वैल्यू एक साल बाद सेम नहीं होगी, तो हम उसमें से क्या करते हैं, उसका इन्फ्लेशन फैक्टर हटा देते हैं। तो इन्फ्लेशन फैक्टर हटा के सपोज मेरा 5 साल में आया 6 लाख रुपए, और मैंने लास्ट में सेल भी कर दिया उसको 2 लाख रुपए में, तो 8 लाख रुपए हो गया। मैंने उसमें से इन्फ्लेशन फैक्टर हटाया नहीं इसमें से, क्योंकि एज इट इज सेड कि जो आज 1 रुपए की वैल्यू है, वो फ्यूचर में 1 रुपया नहीं होगा, वो कम ही होगा। तो इसमें से मैंने इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन फैक्टर हटाया, तो सपोज ये वैल्यू आ गई 6.5 लाख रुपए, और मैं आज दे रहा हूँ उसको, उस कार को परचेज करने के लिए 5 लाख रुपए। तो मेरा बेनिफिट कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए। और मेरी टोटल जो कैश फ्लोज हो गए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो जिसको मैं बोल रहा हूँ, टोटल कैश फ्लो हो गए 8 लाख रुपए। उसमें से मैंने इन्फ्लेशन हटाया, तो वो हो गए 6.5 लाख रुपए। तो इनकम अप्रोच में हम देखते हैं कि हमारी फ्यूचर में इनकम कितनी हो रही है। तो जैसे मैंने बताया अभी लास्ट स्लाइड में कि रेगुलेटरी वैल्यूएशंस होती हैं फेमा के लिए, इनकम टैक्स के लिए, सेबी के लिए, आईबीसी के लिए, ठीक है। ट्रांजेक्शंस वैल्यू होती है जहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशन हो रहे हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो रही है, जॉइंट वेंचर्स हो रही है, तो उससे हम डील प्राइस डिटरमाइन कर लेते हैं, टर्म्स डिटरमाइन कर लेते हैं। इसके बाद आईएफआरएस और इंड एस में जैसे वैल्यूएशन होती है आपकी गुडविल की, इसॉप्स की, और इम्पेयरमेंट इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के लिए। इसके बाद 3 क्लास डिटरमाइन की है आईबीबीआई ने वैल्यूएशंस के: लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। लैंडेड बिल्डिंग में आपका क्या क्या आता है, रियल एस्टेट आ गई। रियल एस्टेट कैन बी ए रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट, इवन डैम्स, दैट इज आल्सो ए पार्ट, उसका पार्ट आपका रियल एस्टेट पे फॉल करेगा। रियल एस्टेट की वैल्यूएशन ज्यादातर बैंक्स में यूज होती है, किस पर्पस के लिए, लोन्स के लिए यूज होती है, टैक्सेशन के लिए। आपका कैपिटल गेन जब आप निकालते हैं तो 1/4/2001 की वैल्यूएशन निकलवानी पड़ती है, आपको इंश्योरेंस करवाने के लिए करवानी पड़ती है वैल्यूएशन।
फैक्टर क्या क्या होते हैं रियल एस्टेट वैल्यूएशन के लिए, कि लोकेशन क्या है, ठीक है, मतलब वेयर इट द लैंड इज लोकेटेड, बिल्ट अप एरिया कितना है, यूसेज यूसेज बहुत डिटरमाइन करता है कि वेदर इट इज एग्रीकल्चर लैंड, इंडस्ट्रियल लैंड, और टाइटल क्लियर है या नहीं है, और मार्केट ट्रेंड क्या है। जैसे आपका गुड़गांव की मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक एक अप ट्रेंड रहा, तो मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ये सारे फैक्टर डिटरमाइन करते हैं लैंड की वैल्यूएशन। इसके बाद प्लांटर मशीनरी होता है। प्लांटर मशीनरी में बेसिकली जो आपकी मशीनरी है, जो कि फिजिकल एसेट, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है या प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रही है। इसमें मशीनरी आएंगी, आपके इक्विपमेंट्स आएंगे, टूल एंड इंस्टॉलेशन आएंगे। अब प्लांटर मशीनरी एक अपने आप में, क्योंकि आप एक एक जो चार्टर्ड इंजीनियर है या जो रजिस्टर्ड वैल्यू अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांटर मशीनरी, उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है कि किस तरह से उसकी वैल्यूएशन करें, क्योंकि ही कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की नॉलेज होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट के सिनेरियो है। तो इस इन केसों में वैल्यूएशन कैसे करते हैं कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या, अगर उस मशीनरी को बदला जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, उस प्लांट प्लांट को बदला जाएगा तो उसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, या हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू ले लेते हैं, या फिर हम ये देख लेते हैं कि वो मशीनरी जो हमें लगी पड़ी है हमारे पास, जैसे मैंने अभी कार का एग्जांपल दिया, कार इज काइंड ऑफ मशीनरी, तो हमारे लिए फ्यूचर में क्या वो इनकम जनरेट करके देगी। इसके बाद फोकस ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी, क्योंकि हम इसी में फॉल करते हैं एज ए सीएस। तो किस किस असेट की वैल्यूएशन नॉर्मली करते हैं, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, दिस इज ए टेंटेटिव लिस्ट। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी शेयर्स की हम वैल्यूएशन करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन करते हैं, डिबेंचर्स की, बॉन्ड्स की, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की भी वैल्यूएशन होती है, ऑप्शंस की, जिसको डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट में आपका क्या ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। देन वैल्यूएशन कंसीडर क्या करती है, जो हमने अभी देखा कि तीन तरह के अप्रोच हैं, एनएवी, नेट एसेट वैल्यू, देन आपका मार्केट प्राइस, देन आपका इनकम अप्रोच। तो मार्केट प्राइस के बेस पे आपका डिटरमाइन होता है उससे इनकम कितनी आएगी, डिविडेंड कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, और फैक्टर रिस्क फैक्टर क्या है। जितना ज्यादा रिस्क होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। असेट अप्रोच में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि असेट माइनस लायबिलिटी। असेट हैवी कंपनी केस में, लिक्विडेशन सिनेरियो में रियल एस्टेट कंपनीज बेसिकली यूज करती हैं इनको। इनकम अप्रोच में क्या क्या है, फ्यूचर इनकम कितनी होगी आपकी, मेथड जो फॉलो होते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, या क्या कहते हैं आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग। मार्केट अप्रोच आपका कंपेरेबल कंपनी मेथड या प्रीसेंट कंपेरेबल ट्रांजैक्शन मेथड यूज होता है। और एज ए प्रैक्टिकल सिनेरियो, इन 90% रिपोर्ट्स आर फ्रेम्ड अराउंड डीसीएफ। उसके रीजंस है मल्टीपल, दैट वी विल डिस्कस। अब बात आती है, ये बहुत सारे लोग प्रोफेशनल्स, सी ए सी एस में सभी, काफी लोग मुझे टेक्स्ट भी करते हैं कि प्रोसीजर क्या है, ये तो बताइए कैसे करना है, कौन बन सकता है। तो रजिस्टर्ड वैल्यू कोर्स करने के लिए आपको 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। अब चैलेंज आता है कि फिजिकल जाना पॉसिबल है नहीं है, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो मैंने जैसे बोला कि बीइंग ए सीएस ये मैंडेटरी नहीं है कि आप आईसीएस से आई आरबीओ से ही करें। दे आर मोर देन 40 आरबीओस। आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं, बहुत सारे आरबीओ ऑनलाइन कोर्स भी करवाते हैं। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी, अगर आपको जाना है ऑफलाइन भी कर सकते हैं। ऑफलाइन करने में क्या होता है, आपकी बॉन्डिंग बन जाती है फेलो मेंबर से, तो वो बॉन्डिंग लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो दैट इज द बेस्ट सिनेरियो गोइंग फॉर द ऑफलाइन। आपको कुछ कुछ मेंटोर्स भी मिल जाते हैं वहां पे, जिनसे आप क्वेरी भी पूछ सकते हो। आपने कोर्स कर लिया लेकिन आपको काम नहीं आ रहा एक्चुअल में, तो वहां पे आपको मेंटोर्स मिल जाएंगे जिनसे आपका पर्सनल टच हो सकता है। तो ऑफलाइन करने का ये फायदा रहता है। 50 घंटे की ट्रेनिंग है, तो वी कैन से कि एक वीक की ट्रेनिंग है, कोई बहुत बड़ा ऐसा चैलेंज नहीं आता कि बहुत लेंदी ट्रेनिंग है। लैंडेड बिल्डिंग कौन कर सकता है, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, ये सब लोग कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है उनके लिए, उनके लिए एलिजिबिलिटी है कि पोस्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लांटरी मशीनरी, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, प्रोडक्शन इंजीनियर्स, ये सब कर सकते हैं। उनके पास भी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इंजीनियरिंग या डिप्लोमा या बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सी डिग्री है उनके पास, पोस्ट ग्रेजुएट है या बैचलर्स डिग्री है।
अब सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में कौन कौन कर सकता है? सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, सीएमए कर सकते हैं, एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं, सीएफएस कर सकते हैं। जो लेकिन आपके पास मेंबरशिप होनी चाहिए रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीए, सीएस, सीएमए के लिए 3 साल का है, और बाकी अदर कोर्सेज के लिए 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सीए, सीएस, एमबीए, सीएमए, एमबीए फाइनेंस और सीएफए कर सकते हैं। मेंबर होना चाहिए आपको, एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका फाइनेंशियल वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस या मर्जर एंड एक्विजिशन, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इन सब में। अदर देन जो आपके डिग्री होल्डर्स हैं, प्रोफेशनल सीए, सीएम, सीएस, सीएमए के अलावा, और 50 घंटे की आपको पहले ट्रेनिंग करनी है किसी भी आरबीओ से। अब ट्रेनिंग करने के बाद क्या है, इसका ना एग्जाम होता है बेसिकली। एग्जाम ऑनलाइन है, ठीक है। आप अपने हिसाब से डेट एंड टाइम चूज कर सकते हैं। एग्जाम का रिजल्ट इमिडिएटली स्क्रीन पे आ जाता है। 60% पासिंग क्राइटेरिया है। नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे ये था कि लोग ना मल्टीपल स्लॉट बुक करवा लेते थे, कि सेम डे में दो दो तीन तीन स्लॉट बुक करवा लेते थे, या एक एक दिन के गैप पे स्लॉट बुक करवा लेते थे। तो क्यों? वो इसलिए था कि चलो आज इस एक सेशन में पास नहीं हो तो नेक्स्ट सेशन में पास हो जाएंगे, ऐसा लोगों ने बहुत किया। तो आज की डेट में कूलिंग पीरियड कर दिया गया है अथॉरिटी की तरफ से, कि अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको रीअपियरेंस के लिए एक पॉज लेना पड़ेगा। आप वो आई थिंक 2 to 3 मंथ्स है वो टाइम पीरियड, और उसके बाद ही आप रीअपियर हो सकते हो। तो इसलिए आज की डेट में पासिंग परसेंटेज भी बहुत लो हो गया। जो नए मेंबर एड ऑन हो रहे हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं मोटा मोटा एसएफए कैटेगरी में, तो एक साल में 100 मेंबर भी ऐड नहीं हो पा रहे हैं इन ईच ईयर। जबकि इनिशियली, सिंस लोग मल्टीपल अटेम्प्ट्स इमीडिएटली देते रहते थे, एंड 60% का पासिंग क्राइटेरिया है, तो लोग पास पास भी कर जाते थे। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल बात। प्रैक्टिकल बात क्या है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मुझे कितना टाइम निकालना पड़ेगा इस एग्जाम को पास करने के लिए, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बीइंग ए प्रोफेशनल हम सब लोगों के पास टाइम की कमी तो रहती है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैंने पास किया था, तब मैंने सब कुछ काम छोड़ के लगातार 15 दिन 2 बुक्स पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव टाइप वाली। और जितना मैं सुनता हूँ अपने फेलो प्रोफेशनल से, आज की डेट में एग्जाम काफी टफ हो गया है। तो मान के चलिए पढ़ाई तो इसमें करनी पड़ेगी, और पास होना है तो आपको कम से कम 15 से 20 दिन सब कुछ छोड़ के कंटिन्यू, या फिर आपको मतलब 15 से 20 दिन तो अगर लगातार आप सब कुछ छोड़ रखा है आपने, तो इतना तो टाइम लगेगा ही लगेगा पढ़ने के लिए। नहीं तो फिर आपको थोड़ा सा और, अगर पॉजेज में कर रहे हैं या कम टाइम दे रहे हैं, तो आपको टाइम देना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली, तभी एग्जाम पास हो पाएगा। एग्जाम थोड़ा सा टफ कर दिया गया है आपको। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की मल्टीपल बुक्स भी देखनी पड़ेगी, तभी आप ये एग्जाम पास कर पाएंगे। और अगर एग्जाम पास हो जाता है, तो उसके बाद फिर आरबीओ के पास आप जाइए। आरबीओ विल गेट यू रजिस्टर्ड, और आपकी एप्लीकेशन अल्टीमेटली आरबीओ ने अप्रूव करने के बाद आईबीबीआई के पास चली जाती है। और आईबीबीआई जैसे ही उसको अप्रूव करता है, यू गेट ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन और आता है कि क्या मुझे एग्जिस्टिंग अपना सीए, सीएस, सीएमए का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सरेंडर करना पड़ेगा? इट इज नो। आप दोनों प्रोफेशन साथ में कर सकते हो। आपको वैल्यूएशन का सीओपी रन करने के लिए एग्जिस्टिंग सीओपी सरेंडर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सीएस के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि फायदेमंद है ये कोर्स करना। मैं मैंने जैसे अपना स्टार्ट किया बिगिनिंग भी, कि जब मैंने पास ऑन किया तो उसके बाद मैंने काफी टाइम तक रजिस्टर नहीं किया, तो मुझे लगा इसमें काम कहाँ से आएगा, क्योंकि मेरे कोई लिंकअप नहीं थे। लेकिन सिंस आज की डेट में अगर हम बात करते हैं आपके सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट कैटेगरी में, तो तकरीबन 2500 पैन इंडिया सिर्फ हैं जो एग्जैक्ट वैल्यूअर्स है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर 2500 के आसपास हैं।
तो पैन इंडिया 2500 है। और अगर हम बात करें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो मर्जर एक्विजिशन हो, प्राइवेट प्लेसमेंट हो, या या आपका फेयर वैल्यूएशन हो, तो दैट इज ह्यूमंगस। ठीक है, एएफ वैल्यूएशन हो, क्योंकि एएफ एएफ ने तो मल्टीपल इन्वेस्ट की होती है, तो ह्यूमंगस वॉल्यूम है। ठीक है, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी नहीं है, क्योंकि 2500 में से सबकी सब प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं बहुत सारे लोग। और अगर बात करें कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन, जैसे ईसॉप्स की वैल्यूएशन हो गया, आपका गुडविल इंटेंजिबल्स की वैल्यूएशन हो गया, तो उसमें से 10 में से एक ही को नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज, दैट हाउ टू डू दैट थिंग। तो इसलिए डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज की डेट में भी, आफ्टर 7-8 ईयर्स। तो इसलिए इसको इसको करने से वैल्यू एडिशन ही होता है प्रैक्टिस में। आपका रेवेन्यू ही बढ़ता है। देन वाई कंपनी सेक्रेटरी? क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रही होती है तो उसका पेपर वर्क सबसे पहले कंपनी सेक्रेटरी के पास ही आता है। क्लाइंट आपको अप्रोच करता है कि, या अगर आप किसी सीए के साथ भी काम कर रहे हैं, तो सीए आपको ही अप्रोच करता है, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू अप्रोच डायरेक्टली टू द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, कि यार इसका सारा पेपर वर्क करना है, मुझे बताइए कि क्या क्या इसमें वैल्यूएशन चाहिए, नहीं चाहिए, इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट में कैसे होगा, मर्जर्स में कैसे होगा। तो यू आर द डायरेक्ट पार्टी आइदर टू दैट पर्टिकुलर प्रोफेशनल और टू द डायरेक्ट क्लाइंट। तो अगर आप एडवाइस करेंगे कि मैं एंड टू एंड मैं ही खुद करवा कर देता हूँ या करवा देता हूँ, ठीक है, तो इट वर्क्स एज ए लेस हेडेक फॉर देम, वर्क्स एज ए सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर देम, एंड यू आर एबल टू ड्राइव मोर मार्जिन और मोर प्राइस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, क्योंकि आपने अपनी ऊपर हेडेक ले ली, उस पर्टिकुलर क्लाइंट को या उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल को 10 लोगों से डील करने की जरूरत नहीं है। एंड यू आर एडवाइजिंग देम एंड टू एंड, इंस्टेड की मैं अपना वाला पार्ट देख लेता हूँ, आप बाकी वाला पार्ट देख लीजिए। तो इसलिए सीएस के लिए ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन है, बिकॉज यू आर द इनिशियल पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन विद द क्लाइंट और द प्रोफेशनल, कन्वर्ट द असाइनमेंट। तो और अगर हम इंसॉल्वेंसी की बात करें, तो बहुत सारे केसों में इंसॉल्वेंसी में सीएस, या वॉलेंटरी लिक्विडेशन में या मर्जर एक्विजिशन में प्योर ऐसा प्रोफाइल्स हैं जहाँ पे सीएस डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, और जहाँ पे उनका कंपटीशन बहुत कम है विद अदर प्रोफेशनल्स। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असेट की वैल्यूएशन होती है बेसिकली, क्योंकि सीएस लोग इन्वॉल्व रहते हैं शेयर इशुएंस में, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जितनी भी आपकी रिस्ट्रक्चरिंग होती है, इसमें भी सीएस प्रोफेशनल्स का बहुत ज्यादा रोल रहता है। इंसॉल्वेंसी वैल्यूएशंस होती हैं, वैल्यूएशन एनालिस्ट रोल, ये बहुत हाई पेइंग जॉब्स रहती हैं। ये इंडस्ट्री हमेशा हमारी लाइन में काफी बार इग्नोर की जाती है। वैल्यूएशन एनालिस्ट इज ए प्रोफाइल जहाँ पे आपके बड़े बड़े बैंकर्स हो गए, जेपी मॉर्गन, देन आपका बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वैल्यू एडिशन करती हैं। तो एज ए जॉब भी ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन द वैल्यूएशन फील्ड, नॉट ओनली एज ए प्रैक्टिस। तो जैसा मैंने बताया, आपके जो रोल्स रहते हैं वो क्या है। फाइनेंशियल कंसल्टिंग में आपको कंसल्टिंग फर्म्स में जा सकते हैं, वैल्यूएशन एंटिटीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ योर कैरियर। वैल्यूएशन एनालिस्ट उनकी उनमें प्रोफाइल होती है, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एसोसिएट, दीज आर द डेजिग्नेशंस व्हिच आर जनरली यूज्ड इन दीज फर्म्स। आप वहां पे एडवाइजरी करोगे ट्रांजेक्शन बेस्ड वैल्यूएशन को या रेगुलेटरी बेस्ड वैल्यूएशन को। फिर इसके अलावा अगर आपको इसकी नॉलेज है, तो आप एज ए इन्वेस्टमेंट बैंकर भी काम कर सकते हो, प्राइवेट इक्विटी ट्रांजेक्शन में काम कर सकते हो, फंड रेजिंग में काम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा क्लाइंट के साथ डिस्कस कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर शेयर की, सपोज आप किसी ऐसे क्लाइंट के पास गए जो कि एसएमए लिस्टिंग करना चाहता है, अगर आपको वैल्यूएशन की नॉलेज है, तो द डिस्कशन विल गो लॉन्ग ऑन विद द प्रमोटर्स। उनको कंप्लाइंस सुनने में कम इंटरेस्ट रहता है, उनको अपनी कंपनी की वैल्यूएशन कितनी मिल रही है उसमें सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। आप प्रॉपर, अगर आपको नॉलेज है शेयर प्राइस के बारे में, तो आप प्रॉपरली नेगोशिएट भी कर पाओगे, डील को उस हिसाब से स्ट्रक्चर भी कर पाओगे। इवन अगर मैं बात करूं कमाई की, कि अर्निंग्स की, अगर आपको वैल्यूएशन की नॉलेज है, तो आप उस हिसाब से अपनी कमीशंस या जो भी आपको उसकी डील के ऊपर रेवेन्यू मिलना है स्लैब बेस्ड, तो वो भी प्रॉपरली स्ट्रक्चर कर पाओगे। इसके अलावा बहुत बार अगर आपको वैल्यूएशन की नॉलेज है, तो बहुत बार, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक मेरे पास क्वेरी आई कि जहाँ पे कंपनी की पर शेयर की बुक वैल्यू थी 50 रुपए या 100 रुपए,
एंड द पर्सन हैज इशूड, द प्रोफेशनल हैज मेंशन टू मी कि क्या आप 10 रुपए पे वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू कर सकते हो फॉर शेयर ट्रांसफर पर्पस। तो जैसा मैंने बिगिनिंग में बताया कि जहां पे रेगुलेटरी में प्रॉपरली डिफाइंड है कि आपको क्या मेथड फॉलो करना है वैल्यूएशन का, तो शेयर ट्रांसफर के लिए अगर हम देखें तो इनकम टैक्स एक्ट में रूल 11 यूए है जिसने प्रॉपर मेथोलॉजी डिफाइन की हुई है कि आपको कैसे कैसे वैल्यूएशन करनी है। आप उसमें से डिविएशन नहीं ले सकते, उसमें से एक भी स्टेप नहीं हटा सकते। क्यों? क्योंकि प्रॉपरली एक्ट ने बोला हुआ है, ये पर्टिकुलर रूल है 11 यू है और आपको ये स्टेप लेने हैं। तो हम चाह के भी 10 रुपए पे कर नहीं सकते, और कर भी दी तो वो एज ए वैल्यू मेरे लिए भी चैलेंज रहेगा और कंपनी के लिए भी चैलेंज रहेगा, क्योंकि उसमें डिमांड एडिशन हो जाएगा उसमें कंपनी का। तो प्रोफेशनल को बेटर अंडरस्टैंडिंग और क्लाइंट को बेटर अंडरस्टैंडिंग देने में हेल्प करता है अगर आपको वैल्यूएशन की नॉलेज है तो। हमारे पास बहुत बार ये क्वेरी आती है कि फेमा में क्या हम फेमा में क्या हम बुक वैल्यू पे इशू कर दें? तो फेमा में लिखा है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड्स, या तो जब हम इंटरनेशनल वैल्यूएशन एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मेथड्स की बात करते हैं तो तो हमें इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड रेफर करने पड़ते हैं। और इंटरनेशनल वैल्यूएशन के स्टैंडर्ड में कॉस्ट अप्रोच बड़ा स्पेसिफिक बोला गया है कि आप कॉस्ट अप्रोच लगा सकते हो खाली उन केसों में जहां पे कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है या कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है। तो वहां पे हम चाह के भी बुक वैल्यू नहीं लगा सकते। तो वैल्यूएशन की नॉलेज से आपको क्लाइंट को कन्वर्ट करने में भी आसानी मिलती है, और आप अपने क्लाइंट को बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज है, लीगल की नॉलेज में फायदा करता है आपको वैल्यूएशन, फाइनेंशियल स्किल सेट में बात करता है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैटर्स में नेटवर्किंग में बहुत हेल्पफुल होता है। ये तो हो गया वैल्यूएशन के बारे में कि वैल्यूएशन कैसे करें कैसे नहीं करें, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद जो प्रैक्टिकल इश्यूज आते हैं, मैं क्वेरीज आती हैं कि सर कहाँ से स्टार्ट करें। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरवीओ आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि आपको अपने ही पेरेंट बॉडी के पास जाना है। आप 14-15 जितने भी आरवीओ से सभी में से कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन, बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। अलग अलग आरवीओ में अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चलते रहते हैं। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने इजीनेस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, काफी ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, कैन नॉट बी टेकन इन कैजुअल मैनर। उसके बाद अगर फेल नेगेटिव मार्किंग है, 60 नंबर पासिंग का है। अगर फेल होते हैं तो कूलिंग ऑफ पीरियड है, जिसके बाद आप दोबारा बैठ सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन ए पर्टिकुलर ईयर बहुत कम हो जाते हैं। डिमांड सप्लाई की बात करें, डेफिनेटली सिक्योरिटीज एंड फाइनेंशियल एसेट की कैटेगरी में 2500-2600 के आसपास रजिस्टर्ड वैल्यू है। जो मैंने लास्ट चेक किया था, आई थिंक 2587 थे दी अराउंड 1 month बैक। आई नीड टू चेक अगेन व्हाट इज द लेटेस्ट स्टेटस। तो 2600 के आसपास है। तो डेफिनेटली डिमांड सप्लाई स्क्वीज है, जितनी डिमांड है उतने रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है। इसके बाद इसके बाद आता है कि काम कैसे, एग्जाम पास कर लिया, सब कुछ कर लिया, रजिस्टर कर लिया, काम कैसे सीखे? तो आपको अपने पास अपने मेंटर्स डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, जो लोग आपको अपना एक सर्कल बनाना पड़ेगा जहां से आप नेटवर्किंग करके या जैसे भी है आप उनसे कोई भी फंसते हैं तो क्वेरी पूछ सके। क्योंकि वैल्यूएशन प्रोफेशन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, व्हेन आई स्टार्टेड इन 2019, तो आपको कोई मिलता ही नहीं कि जो कि आपको गाइड कर सके। ऑनलाइन आपको मटेरियल अब तो फिर भी थोड़ा बहुत मिलने लगा है। ऑनलाइन जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, आपका ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, या और भी इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनका मटेरियल आपको जल्दी से ऑनलाइन भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको मेंटर्स रखने चाहिए, अपना नेटवर्किंग करना पड़ेगा, आप, आपको अपना सर्कल बनाना पड़ेगा। तो आज की डेट में जैसे हम 7-8 वैल्यूअर्स एक साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी फंसते हैं तो आपस में क्वेरीज डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन करते हैं। इसके बाद बात आती है कि सर इसमें क्या इसमें अर्निंग्स हैं? डेफिनेटली अगर आप क्वालिटी वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आपको नॉलेज है, तो डेफिनेटली इट्स ए गुड प्रोफेशन टू अर्न। अर्निंग्स है, और आप इसको कैसे लीवरेज कर पाते हैं एज ए एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंक्रीज करने में, वो इंपॉर्टेंट है। आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी जा सकते हैं इसके थ्रू, अपना नेटवर्क बना सकते हैं, एज ए ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सर्विस में भी जा सकते हैं।
या आप इस प्रोडक्ट को इंटीग्रेट कर सकते हैं इन लीगल ड्राफ्टिंग। आप एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन दे सकते हैं कि आप एसएचए भी कर रहे हैं, सेक्रेटरी भी कर रहे हैं, आप वैल्यूएशन भी दे रहे हैं। तो जहाँ पे सिंगल विंडो सॉल्यूशन मिल गया एक क्लाइंट को, तो वो आपके लिए एक पैकेज बन गया जहाँ पे आप हायर प्राइस गवर्न कर पाओगे, लॉयर से compete कर पाओगे, क्योंकि सिंगल विंडो सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं लोग मार्केट में। एक स्टार्टअप की फंडिंग होनी होती है, तो उसको या तो बड़ी फर्म के पास जाना पड़ेगा जो कि उसके बजट में नहीं हो पाता सिंगल विंडो के लिए। छोटे में क्या होता है, उसको लॉयर से अलग डील करना पड़ता है, वैल्यूअर से अलग डील करना पड़ता है, और कंपनी सेक्रेटरी से अलग डील करना पड़ता है। तो वो वहां पे उसको उसकी फाउंडर के पास इतनी ना तो बैंडविड्थ होती ना इतने पैसे होते। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट आपको सिंगल विंडो सॉल्यूशन अगर आप दे पाते हैं, तो इट विल गिव ए हायर प्राइसिंग टू यू, मार्जिन्स है इसमें। अब इसके बाद, ये तो हो गया कोर्स की बात। अब जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती हैं वैल्यूएशन को वैल्यूएशन करने में हमें, उस पे आता हूँ। इनकम टैक्स एक्ट में जो डिफाइन किया गया है आज की डेट में, पहली बात तो वैल्यूएशन जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, कि हु विल डू द वैल्यूएशन, अलग अलग एक्ट्स में अलग अलग क्वालिफिकेशन डिफाइन की गई है, स्टैंडर्डाइज नहीं है आज की डेट में। काफी बार बात चलती है कि इसको स्टैंडर्डाइज किया जाए, लेकिन सिंस डिफरेंट अथॉरिटीज हैं और वैल्यूएशन एज एन एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है, तो इसलिए वो यूनिफॉर्मिटी आने में टाइम लगेगा। इवन दो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन बहुत स्लो पेस पे चल रहे हैं। तो इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स में मर्चेंट बैंकर्स डिफाइंड है। कंपनीज एक्ट की बात करें तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड वैल्यू टर्म डिफाइंड है। और फेमा की बात करें तो फेमा में सीए और मर्चेंट बैंकर्स दोनों डिटरमाइंड है। अब अ, जो जिस एक्ट में डिफाइंड है पर्टिकुलर, वही उस एक्ट में वैल्यूएशन कर सकता है। तो सपोज एक क्वेरी आती है कि सपोज एक फॉरेन ट्रांजैक्शन हो रही है जहाँ पे एफडीआई हो रही है और शेयर इशू हो रहे हैं। तो क्या सर, हमें दो वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड वैल्यू की रिपोर्ट आपको चाहिए ही चाहिए प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए। तो क्या हमें फेमा के लिए भी सेपरेट रिपोर्ट चाहिए मर्चेंट बैंकर की? तो फेमा में जो लिखा हुआ है, फेमा में लिखा हुआ है वर्ड सीए और मर्चेंट बैंकर, सीए और मर्चेंट बैंकर। तो उन केसेस में क्या होता है, उन केसेस में प्रेफरेबली ये किया जाता है कि एक सी ऐसा रजिस्टर्ड वैल्यू ढूंढा जाता है कि जो कि सीए भी है, और वो ड्यूअल कैपेसिटी में सिंगल रिपोर्ट इशू करता है। तो इस केसेस में क्या होता है, आपका आपका आपको मल्टीपल रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती और क्लाइंट का पैसा भी सेव होता है। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो और आता है इसके अलावा, जिसमें एक ही कंपनी, क्योंकि स्टार्टअप्स के केस में बहुत ज्यादा होता है ये कॉमन, एक ही कंपनी सेम टाइम पे शेयर ट्रांसफर भी कर रही है, ठीक है, और सेम टाइम पे नए शेयर भी इशू कर रही है। शेयर ट्रांसफर हो रहा है 10 रुपए पे, और नए शेयर इशू हो रहे हैं सपोज 10,000 रुपीज पे। सबको लगता है यार ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सेम टाइम पे शेयर की वैल्यूएशन 10,000 हो गई और सेम टाइम पे शेयर ट्रांसफर के लिए वैल्यूएशन 10 रुपए हो गई। तो जैसा मैंने लास्ट प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया कि जहां पे स्टैच्यू में कोई पर्टिकुलर मेथोलॉजी डिफाइंड है, तो वो पर्टिकुलर मेथोलॉजी ही प्रिवेल करेगी, बाकी जगह क्या लिखा है कुछ मैटर नहीं करता। तो शेयर ट्रांसफर जो गवर्न करता है इक्विटी शेयर्स, स्पेसिफिकली आई एम सेइंग दिस लैंग्वेज, इक्विटी शेयर ट्रांसफर इज गवर्न बाय रूल 11 यूए ऑफ इनकम टैक्स रूल्स, जहां पे एनएवी मेथड या बुक वैल्यू मेथड प्रॉपरली डिफाइंड है। वो कहता है कि आपका जो ट्रांसफर है वो बुक वैल्यू या एनएवी मेथड से नीचे नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर हो सकता है। और सिंस वहां पे ये पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया है स्टैचू ने फॉर शेयर ट्रांसफर पर्पस, और स्टैचू प्रिवेल करता है ओवर अदर मेथड्स विच हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय पर्टिकुलर वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स। तो इसलिए सेम टाइम पे, बिकॉज स्टैचू हैज डिफाइंड ए मेथड, तो आप 10 रुपए पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। और जो शेयर इश्यूएंस होना है वो फेयर वैल्यू पे लिखा है, शुड नॉट बिलो फेयर वैल्यू कंपनीज एक्ट में। तो वहां पे आप फेयर वैल्यू जो डिटरमाइन कर रहे हो वो 10,000 आ रही है, तो आप सेम टाइम पे 10,000 पे फ्रेश इश्यूएंस भी कर सकते हो। दिस इज नॉट ए चैलेंजिंग थिंग एंड कैन नॉट बी चैलेंज बाय द स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज एज वेल।
ये पॉइंट हुआ एक। दूसरा पॉइंट आता है फेमा का। फेमा में जनरली क्या होता है, उसने बोला है कि इंटरनेशनली फेमा में बहुत बार बैंकर्स, आई विल नॉट नेम द बैंकर्स, ए पर्टिकुलर बैंकर तो हमेशा ऑब्जर्वेशन देता है वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में। सो तो फेमा की वैल्यूएशंस में बहुत चले जाते हैं। फेमा में क्या होता है कि आप जब भी वैल्यूएशन रिपोर्ट ले रहे हैं या इशू करवा रहे हैं क्लाइंट के बिहाफ पे या खुद भी इशू कर रहे हैं, तो वहां पे पर्टिकुलर लाइन लिखी जाए कि जो वैल्यूएशन है एज पर इंटरनेशनल वैल्यूएशन मैथोलॉजी, एक्सेप्टेड वैल्यूएशन मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने इशू की है, ताकि वैल्यूएशन, ताकि बैंकर इसको उसमें ऑब्जर्वेशंस रेज ना करे। दूसरी चीज, क्वेश्चन आता है बहुत बार प्रोफेशनल्स का भी कि क्या हम फेमा में बुक वैल्यू पे कर सकते हैं, क्योंकि सबके दिमाग में ये होता है कि डीसीएफ सुना हुआ है, तो डीसीएफ इज द ओनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वैल्यूएशन स्टैंडर्ड। तो डेफिनेटली डीसीएफ इज द मोस्ट यूज्ड मेथड, बट फेमा में आप बुक वैल्यू मेथड भी लगा सकते हो। कैसे बुक वैल्यू मेथड कैसे लगा सकते हैं, मैं जैसे मैंने बताया आईवीएस 200 से कि कॉस्ट अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो। कॉस्ट अप्रोच फॉलो करने के लिए कंडीशंस क्या हैं, या तो कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, कंपनी बिल्कुल न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, वहां पे आप उसका प्रोजेक्शंस प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी न्यूली फॉर्म्ड है, न्यूली न्यूली बिजनेस में है। तो लेकिन आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि हमने हमने बुक वैल्यू मेथड या कॉस्ट अप्रोच क्यों लगाई है, ताकि बैंकर्स उसको चैलेंज ना करें। अब आते हैं इन केस ऑफ स्टार्टअप्स, एक जनरली कैप टेबल, अगर सभी ने एसएचए देखे हो तो ईसॉप पूल बना देते हैं कैप टेबल्स में। तो कैप टेबल में जब ईसॉप पूल बना देते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है कि जो भी शेयर फ्यूचर में इशू हो टू द एम्प्लॉयज और एनी वन एल्स एज ए कंसल्टेंट, तो वो उस पूल में से जाए, ताकि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का शेयर डाइल्यूट ना हो। तो बट बहुत बार क्या हुआ, पूल तो बन गया लेकिन पॉलिसी नहीं बनी, और वो शेयर, जो ईसॉप पूल के शेयर हैं वो ईसॉप पूल में पड़े हुए हैं, ना तो वो ग्रांट हुए ना वेस्ट हुए, और ना पॉलिसी बनी है। क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या हमें उसको वैल्यूएशन करने के लिए डिनोमिनेटर में लेना है या नहीं लेना है। तो उसको जो ईसॉप पूल एग्री हो गया एज पर इन्वेस्टर, वो पर्टिकुलर क्या कहते हैं, आपका फुली डाइल्यूटेड बेसिस पे माना जाता है, और उसको डिनोमिनेटर में लिया जाता है। एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है सीसीडी कन्वर्जन, जो कि ग्रे एरिया है, और इसका कहीं पे अगर गूगल भी करेंगे तो उस टाइम पे मिलता नहीं है। तो प्रैक्टिकल्स मैंने भी कम से कम 15-20 लोगों से डिस्कस किया, जो अप्रोच थी मुझे सही नहीं लगी। तो उसके बाद मैंने अपनी ही रिसर्च से इसका निष्कर्ष निकाला। तो बेसिकली क्या होता है, सीसीडी जब इशू होते हैं, कंपल्सरी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो उन केसेस में क्या होता है कि जनरली उनमें वैल्यू डिफाइन नहीं होती है। उनमें ये होता है कि वो नेक्स्ट राउंड में जो फंडिंग होगी उससे लिंक कर दिया जाता है कि या तो नेक्स्ट पीरियड के हिसाब से लिंक कर दिया जाता है कि अगर 6 महीने में फंडिंग हो गई तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 12 महीने में तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, या फिर आपका कैप या फ्लो डिफाइन कर दिया जाता है उन इंस्ट्रूमेंट के केस में। अब जब वो कन्वर्ट हो रहे हैं तो काफी बार क्या हो रहा होता है, नेक्स्ट राउंड भी हो रहा होता है। तो वहां पे चैलेंज क्या आता है, बहुत बार वहां पे चैलेंज ये आ जाता है, न्यू राउंड तो हो रहा है 500 करोड़ पे, और जो कन्वर्ट होना है 400 करोड़ पे। तो जब ये सिचुएशन मेरे सामने आई तो लोग तो जो मार्केट प्रैक्टिस क्या करते थे लोग, कि अभी ले ली हमने 400 करोड़ की, एक महीने बाद हमने ले ली 500 करोड़ की। ये तो चलो छोटा गैप हो गया। बहुत बार ऐसा भी हो जाता था कि जहाँ पे 200 करोड़ पे कन्वर्ट हो रहा है, 500 करोड़ पे फ्रेश इशुएंस हो रहा है, तो वहां पे लोग क्या करते थे, एक महीने पहले 200 करोड़ की ले ली वैल्यूएशन, और एक महीने बाद 500 करोड़ की। तो ऐसा प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होता कि एक कंपनी की वैल्यूएशन में इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाए। तो और ये आई रेस करता है अथॉरिटीज के सामने भी कि ऐसा क्यों किया गया। तो उसमें उस केस में बेसिकली जो व्हेन आई रेड इट और आइडेंटिफाई किया कि कन्वर्जन का कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं है, एंड इवन दो द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी is coming to be 500 crore, but since
For conversion, it is pre-agreed. So we need to give the reference of the pre-agreed agreement, that even though the value of the company is 500 crore, but since it is pre-agreed, and as per the pre-agreements, the value shall be 200 CR or 250 CR. That's why for the conversion purpose, particularly for the conversion purpose, this shall be the value, because there is no tax implication of the same at the time of conversion. सो इस तरह के एक चैलेंजेस बहुत ज्यादा आता है। इवन और ये इसका कोई भी रेफरेंस या कोई भी मटेरियल आपको गूगल करने से नहीं मिलेगा। आई गिव सिग्निफिकेंट टाइम टू रिसर्च दिस थिंग। इसके अलावा आपकी जो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपका हो गया ईसॉप वैल्यूएशन। ईसॉप में मल्टीपल मेथड्स हैं। आपका ब्लैक स्कोल्स मेथड है, बायनोमियल मेथड है। 99% वैल्यूअर्स यूज ब्लैक स्कोल्स क्योंकि इजी टू अप्लाई है। बायनोमियल इज इट वेरी टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स मैथोलॉजी और मॉडल, तो इसलिए वैल्यूअर्स उसको यूज करना कम अवॉइड करते हैं, क्योंकि टू बी वेरी क्लियर, फ्रैंकली से कंपनी इतना पे भी नहीं करती है जितना टाइम बायनोमियल मॉडल यूज करने में लगता है, तो इसलिए लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। इंटेंजिबल एसेट के वैल्यूअर्स आपको जल्दी से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की वैल्यूएशन करना, मैथोलॉजी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको लेट मी शेयर प्रैक्टिकल एग्जांपल कि इंटेंजिबल जब एसेट की मैंने फर्स्ट टाइम वैल्यूएशन की, तो आई गॉट मैसेजेस इन ए ग्रुप फ्रॉम ए फेलो प्रोफेशनल की इंटेंजिबल की वैल्यूएशन करवानी है। एंड मैंने भी उससे पहले कभी नहीं की हुई थी, तो फ्रैंकली आई वेंट टू मीट विद हिम। उनसे समझा कि क्या है क्या नहीं है। तो उनको तकरीबन 40 ट्रेडमार्क्स की वैल्यूएशन करवानी थी। अब चैलेंज क्या आता है, जब हम इंटेंजिबल की वैल्यूएशन करने जाते हैं, तो हमें ये नहीं पता कि उस इंटेंजिबल के कारण कंपनी की कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है, या कंपनी के पास सेग्रीगेटेड डाटा ही नहीं है उन अलग अलग प्रोडक्ट्स का जिनकी हमें वैल्यूएशन करनी है। तो वहां पे हमें हमें काफी ज्यादा डिस्कशन करना पड़ता है कंपनी के साथ में, एक मैथोलॉजी डिफाइन करनी पड़ती है कि इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल के कारण क्या कंपनी को बेनिफिट हो रहा है, कंपनी से कितना डाटा मिल सकता है, कितना डाटा नहीं मिल सकता। तो उस तरह से इंटेंजिबल की वैल्यूएशन होती है। और इवन आई विल एड ऑन हियर कि इंटेंजिबल असेट की वैल्यूएशन का काम हमें रजिस्टर्ड वैल्यू से भी मिलता है। लोग बोलते हैं कि कंपटीशन है, मैं कहूंगा कि रजिस्टर्ड वैल्यू ही बहुत बार हमें अप्रोच कर लेते हैं फॉर डूइंग द इंटेंजिबल असेट वैल्यूएशन। एक एडिशनल पॉइंट, आप वैल्यूएशन प्रोफेशन को सेपरेट नहीं देख सकते इन कंपैरिजन टू, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम अदर प्रोफेशन। क्यों? एक अच्छा वैल्यूअर बनने के लिए आपको कंपनीज एक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, फेमा की नॉलेज भी होनी चाहिए, आपको थोड़ी बहुत इंडियस की फेयर वैल्यू भी की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीबी एक्ट में कहाँ पे क्या होता है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको इन सब चीजों की नॉलेज है और आप जब क्लाइंट से डिस्कस कर रहे हो, तो क्लाइंट क्लाइंट को बहुत वैल्यू एडिशन लगती है, वो जल्दी कन्वर्ट होता है, ज्यादा पैसे देने के लिए राजी होता है। तो इसलिए ब्रॉडली ब्रॉडली एटलीस्ट जो वैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जब आप एक रजिस्टर्ड वैल्यू एज ए रजिस्टर्ड वैल्यू काम कर रहे हो या एज ए प्रोफेशनल भी काम कर रहे हो, तो आपको वैल्यूएशन से रिलेटेड बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे मेरी कौन सी वैल्यूएशन लगनी है। मेरी कौन सी वैल्यूएशन लग रही है, मतलब कि मर्चेंट बैंक की चाहिए, रजिस्टर्ड वैल्यू की चाहिए, या सीए की चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी चैलेंज यहाँ पे भी आता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल को ये नहीं पता कि कौन सा वैल्यूअर की रिपोर्ट लगेगी, उसके बाद कौन सा मेथड अलाउड है। इवन हम हमारे इवन कॉस्ट सेविंग के चक्कर में बहुत बार लोग क्या करते हैं कि ऐसे वैल्यूअर्स को अप्रोच कर लेते हैं जो कि एनएवी मेथड पे रिपोर्ट इशू कर देते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ पे वो मेथड अलाउड ही नहीं है। तो अगर आपको वो नॉलेज होगी तो आप अपने क्लाइंट का भी इंटरेस्ट स्टेक सेव कर पाओगे। तो ये बेसिकली प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इश्यूज आती हैं, ये मैंने काफी डिस्कस की। अभिनव भाई, इसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन कर सकते हैं। Bilkul, bilkul, definitely. I believe floor is open for any question. And to start with, Mujji, I already have two, three questions if you allow. Basically, can you just give a brief difference between that? Is there a difference in the valuation report for equity, for debentures, and for warrants, or they are all same and having the same terminology?
हाँ, इसमें मैं एक पॉइंट और आपने ऐड ऑन जो किया, मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ बस। क्योंकि ये बहुत बहुत मतलब इवन बिग सी एफ कंपनी CFOs की भी प्रॉब्लम रहती है। देर आर टू टर्म्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट एंड वैल्यूएशन सर्टिफिकेट। जर्नल पैरलेंस में इवन जो प्रोफेशनल्स हैं, क्लाइंट, तो जो क्लाइंट को तो छोड़ देता हूँ, दे यूज द वर्ड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो वैल्यूएशन इज नॉट ए सर्टिफिकेट, क्योंकि हम उस फिगर को हार्ड कोड ट्रू एंड सर्टिफाई नहीं कर रहे हैं। दैट इज ए एश्योरेंस कि हाँ ठीक है, कंपनी की वैल्यू इतनी है। तो whenever we are referring to the term, it is a valuation report, not a valuation certificate. Now coming to your point of valuing the equity or CCPS or warrants, तो valuation report सबकी different different है, एंड मैथोलॉजी भी डिफरेंट है। बिकॉज इक्विटी की तो प्लेन वनीला वैल्यूएशन हो गई आपकी, बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर अप्रोच, वेदर इट इज NAV और मार्केट कंपैरिजन, और आपका इनकम अप्रोच। ठीक है, जब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, तो प्रेफरेंस शेयर में भी मल्टीपल वैरायटीज है, वेदर इट इज CCPS कंपल्सरी कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वो दैट इज जस्ट नियर टू ए डेट इंस्ट्रूमेंट। तो वहां पे वो डेट का फ्लो हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट आया और लास्ट में वो रिडीम हो गया। तो जैसे हम एक FD की वैल्यूएशन करते हैं या एक बॉन्ड की वैल्यूएशन करते हैं, तो सिमिलरली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वैल्यूएशन हो जाएगी। जहां पे ऑप्शनली कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आ गया, उसमें हमें सारे मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने पड़ेंगे। वहां पे हमें नॉर्मल तो वैल्यूएशन करनी ही करनी है, प्लस साथ में ऑप्शन की वैल्यूएशन भी निकालनी है। तो वो टोटली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट हो गया कंपेयर टू इक्विटी। CCPS में जनरली क्या होता है, सिंस वो दैट इज जस्ट नियर टू इक्विटी, तो उसमें कन्वर्जन फैक्टर डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशन विच हैज बीन अग्रीड बिटवीन द इन्वेस्टर एंड इन्वेस्टी, वो देखना पड़ता है। लेकिन जनरली दैट इज वेरी क्लोज टू आपका इक्विटी। तो उसमें कन्वर्जन टर्म्स हम देख लेते हैं एक बार, और अगर कन्वर्जन टर्म्स की इक्विटी से उसको लिंक कर देते हैं। वारंट्स इज ए आपका ऑप्शन हो गया, आपका प्योर ऑप्शन ऑप्शन इंस्ट्रूमेंट है। तो वो जैसे पहले हमने नॉर्मल इक्विटी की वैल्यूएशन की, और उसके बाद ऑप्शन पार्ट की क्या वैल्यूएशन आएगी, आइदर यूजिंग ब्लैक स्कोल्स मॉडल और आपका बायनॉमियल मॉडल। तो उस तरह से ऑप्शन की वैल्यू मानी जाती है। Just to add on this question, that every time like we need to do the evaluation, right? So in income tax, it says that it need to be done by merchant banker. But as per Companies Act, it's registered valuer. But as a startup, when the valuation need to be taken, if taking two valuation report, one from the merchant banker, one from the registered valuer, right? So it's a cost to them, right? So what mode should be preferred, or it should be mandatory to go for both of them? सर बेसिकली मैं तीनों एक्ट कवर करता हूँ, आपका कंपनीज एक्ट, फेमा और इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, तो कंपनीज एक्ट में आपको रजिस्टर्ड वैल्यू भी चाहिए, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि पैस 3 फाइल करना है आपको, उसमें वहां पे डिटेल डालनी ही डालनी है। इनकम टैक्स एक्ट में एंजल टैक्स हट चुका है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी नाउ टू ऑब्टेन ए रिपोर्ट फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर, क्योंकि एंजल टैक्स इस साल से हट चुका है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ फेमा, जहाँ पे फेमा इन्वॉल्व है, फेमा यूजेस द वर्ड CA कम रजिस्टर्ड वैल्यू, CA कम सी, आइदर सी और मर्चेंट बैंकर। तो जब आप कंपनीज एक्ट में वैल्यूएशन रिपोर्ट इशू करवा रहे हैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर की, तो यू कैन चूज ए CA हु इज आल्सो ए रजिस्टर्ड वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर केस जहां पे फेमा का इन्वॉल्व है। तो ही विल साइन हिज ड्यूअल कैपेसिटी। दिस इज अब क्वेश्चन ये आता है कि कहाँ पे लिखा है, तो आईसीआई की वेबसाइट पे एक नॉलेज सीरीज है जहाँ पे क्वेश्चन आंसर सीरीज है। उन्होंने लिखा है कि ए पर्सन कैन साइन इन ड्यूअल कैपेसिटी, दैट रिपोर्ट shall be valid for both the purposes. Okay, in the case where FEMA is involved, right? सॉरी, In the case where FEMA is involved. इन केस वेयर फेमा इज इन्वॉल्व। Okay. इसमें एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन का आंसर और कर देता हूँ। बेसिकली वैलिडिटी रिपोर्ट को, सॉरी, कि वैल्यूएशन रिपोर्ट कितने टाइम के लिए वैलिड है, ये क्वेश्चन ये भी आता है। तो फेमा में 3 मंथ्स है। ठीक है, फ्रॉम It's द three डेट ऑफ months or वैल्यूएशन, 90 days? 90 डेज, 90 डेज। 90. Okay. ठीक है, 90 डेज, बट मोर पर्टिकुलर 90 डेज। ठीक है, Yes. एंड एंड बाकी एज पर मार्केट सिनेरियो, कंपनीज एक्ट में कहीं डिफाइंड नहीं है उसकी वैलिडिटी, बट एज पर प्रैक्टिकल जो चल रहा है वो 6 मंथ्स मानी जाती है, बट इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। Okay. Okay.
there's one more ambiguity which is going on. I have seen few of the valuation report now in which they have not given the exact figure or exact value. They have given the bracket, like the maximum value should be this and the minimum value should be this. Again, there are some of the alternative valuation report which I have seen in which the exact value has been given. So are both the more preferred, or it's just the art of valuating value, doing the valuation by the valuer? सर इन दिस केस व्हाट आई विल सजेस्ट दैट इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू जहाँ पे आपका ट्रांजेक्शन होनी है और वेयर इट इज नॉट स्टैट्यूटरी ड्रिवन दैट इज ओके। बट आप उस केस में कैसे इसको करोगे जहाँ पे क्योंकि बिकॉज कंपनीज एक्ट में आपको डिफाइन करता है कि द इशुएंस शुड नॉट बी बिलो द फेयर वैल्यू। तो वहां पे एक पर्टिकुलर चैलेंज आएगा तो वहां पे रेंज काम नहीं कर सकती। ओके, ओके, वहां पे आपको डिटरमाइन डिफाइन करना ही पड़ेगा वहां पे ना। okay, okay. But there is no guidelines given anywhere regarding this. नॉट एज सच Okay, एज फार okay, एज आई नो। क्योंकि ट्रांजेक्शन में तो आप विच इज नॉट एज पर क्योंकि आपका आरबीआई भी कहता है इट शुड नॉट बी बिलो फेयर वैल्यू। तो आप कैसे वहां okay, पे बैंकर से आपका टसल ही चलता रहेगा वहां पे okay, अनलेस यू आर गिविंग ए पर्टिकुलर वैल्यू। okay, okay, दैट सेंसिटिव दैट एनालिसिस कैन बी डन इन द सेंसिटिविटी एनालिसिस कि ये पर्टिकुलर रेंज है बट अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं आइदर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी ठीक है एक वैल्यू तो डिटरमाइन करनी पड़ेगी ना रिपोर्ट में। okay, 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 भाई आप कह सकते हो कि मेरी ये 3 या 4 वैल्यू आ रही है दिस इज द प्रोबेबिलिटी असाइन टू दिस particular value and based on this particular probability and this value this is the average value। ये कहीं ना कहीं तो okay, वैल्यू को डिटरमाइन करनी पड़ेगी। okay, okay. Just one more question from my side. That in the case where this one company is on a deal, right? They want to, that company is getting sold out, but they have few of the investment in the form of building, right? Land and building. So when this sale, purchase or merger is going on, then definitely we need to take the valuation for those lands and buildings, right? And then while evaluating the shares of that company, we need to include those valuation report in our valuation report. Yes that need to be Okay, okay. So because the company in that, valuation will be dependent on those assets okay. And if and those assets have been determined by the board of directors itself as per the market rate or the circle rate, will not that be suffice? there should be a basis for the same the Okay, value should be satisfied for the same। अगर मैं बात करूं आईबीसी में तो आईबीसी में तो द अथॉरिटी विल नॉट एडमिट क्योंकि वो कहते हैं कि पर्टिकुलर जो असेट क्लास है उसको ही करना है ठीक है। okay, okay, अगर आईबीसी में मैटर नहीं है अगर वैसे ही स्ट्रेटेजी सेल हो रहा है तो द वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड कि हाँ उसका बेसिस है। okay, बेसिकली इट विल बिकम ए रिस्क फॉर द वैल्यूअर प्रैक्टिकली मैं बोलूँ ना अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सोल डिक्लेरेशन के बेस पे कर लेगा बिकॉज एज वी डू द सेक्रेटरी ऑडिट या स्टैट ऑडिट भी करते हैं तो रिलायंस ऑन द वर्क ऑफ अदर एक्सपर्ट्स जो हम यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी तो okay, दैट वुड बी द मोर मोर अप्रोप्रिएट अप्रोच okay, 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 क्योंकि कल को वैल्यू को उसको जस्टिफिकेशन देना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। okay, okay, okay. And one question with due to curiosity, as we can see, there's a lot of bubble going on, right, on the valuation. The company which has just got incorporated 6 months back is having valuation of more than, I say, per share is at around 2,000, 1,000. So we all know how DCF game goes on, right? But till what extent it is valid and till what precautionary measures as a professional we need to take while doing the valuation? सर इसमें ना बेसिकली मैं प्रैक्टिकल अपने क्लाइंट का ही एग्जांपल देता हूँ ठीक है। द क्लाइंट इज एक्स हेड ऑफ ए वेरी बिग कंपनी ठीक है। द प्रोडक्ट इज इन डेवलपमेंट कंपनी गॉट फॉर्म जस्ट 2 months बैक ठीक है। एंड द प्रोडक्ट विल गेट लाइव ओनली आफ्टर 7-8 months। अभी तो सैंपल्स भी नहीं गए हैं ठीक है। एंड दे आर गेटिंग द फंडिंग एट द वैल्यूएशन ऑफ 40 CR फॉर 8 CR ठीक है। अब वैल्यूएशन में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना वो चैलेंज वैल्यूएशन में 2 फैक्टर होते हैं एक होता है क्वालिटेटिव एक होता है क्वांटिटेटिव। सो वैल्यूएशन इज डिपेंडेंट अपॉन दीज 2 फैक्टर्स। अब क्वांटिटेटिव फैक्टर तो चलो हमें मिल जाते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर की का कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं है। क्वालिटेटिव फैक्टर हो गया आपका मैनेजमेंट की प्रोफाइल
इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है, ठीक है, उसका मैनेजमेंट का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है, दीज आर क्वालिटेटिव फैक्टर्स। सो इन दिस कंपनी सिंस द प्रोफाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर फाउंडर इज सो स्ट्रांग, क्योंकि उसका इतना ज्यादा रिच एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग द फंडिंग। तो क्वालिटेटिव फैक्टर को जो वैल्यू डिटरमाइन कर पाएगा, या उसका जो भी लॉजिक दे पाएगा वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में, वैल्यूएशन इज आल्सो ए स्टोरी बिल्डिंग, Right. ठीक है, इट इज नॉट जस्ट बेस्ड ऑन नंबर्स। इट क्वालिटेटिव फैक्टर्स का पैरामीटर डिफाइन हो सकता है, बट मैं वही बोलता हूँ कि जो प्रैक्टिकल चैलेंज आता है वो ये आता है कि इतने इनपुट नहीं मिलते, ठीक है। लोग कहते हैं कि भैया हमें तो एक रिपोर्ट दे दो, हमें तो कंप्लाइंस पर्पज से चाहिए। एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा प्लीज। मैं No आपको worries, इसका no worries. प्रैक्टिकल आंसर बता देता हूँ। We'll edit it. We'll edit it definitely. It won't be going. ठीक है, तो मैं इसका Good. बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, वैल्यूएशन ना ज्यादातर हमारे पास आती है प्रोफेशनल्स के पास पास में से, ठीक है। और प्रमोटर का बैंडविड्थ होता है पूरी सख्त, क्योंकि उसका दिमाग 10 जगह चल रहा होता है, ये बिजनेस देखूं, इन्वेस्टर से डील करूं, एसएचए देखूं, सेक्रेटरी कंप्लाइंस करवाऊं, या ये इनपुट दूं। तो सबसे ये डुएबल है क्वालिटेटिव फैक्टर को भी डिटरमाइन करना, उसकी मैथोलॉजी बनाना। बट इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टाइम कंस्ट्रेंट। मेरे पास कल वैल्यूशन कल कल असाइनमेंट आएगा, वो बोलेंगे 2 दिन में दे दो, ठीक है, मेरे को समझिएगा टाइम भी नहीं देंगे। Right. तो Right. टाइम कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा है और इनपुट नहीं मिल पाते हैं, अनलेस Right. अनलेस वो जो है, जो देखिए जो जो डील हो रही है, या एएफ की बात करें, इन्वेस्टर हो रहा है, वो भी बेवकूफ नहीं है कि क्यों डील कर रहा है वो उस वैल्यूएशन में। तो वो ऐसा नहीं कि हाइड है, बट उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को फ्रेमवर्क करने के लिए टाइम चाहिए, तो वो टाइम Right. टाइम और वो इनपुट नहीं मिल पाते हैं। तो इस Okay. ये एक कारण है। एंड प्राइसिंग भी उतनी नहीं मिल पाती है, पैसा के हिसाब से भी ड्रिवन होती है चीजें। Right. But I think the sooner the separate authority will be there for the evaluation, right? The stricter will be the compliance and the stricter will be the reporting. And I believe then the realistic value of any entity will be more in the into the domain. सर इसमें ना देखिए, जो जो आईबीबीआई हो गया या आरबीओज हो गए, उन्होंने वैल्यूएशन रिपोर्ट के फ्रेमवर्क के लिए कि क्या क्या उसमें होना चाहिए, वो तो स्टैंडर्डाइज कर ही दिया है कि आपकी रिपोर्ट में ये चीजें, जैसे इंडस्ट्रियल एनालिसिस, आपके फाइनेंशियल्स, आपके डिस्क्लेमर्स, ये सब चीजें होनी चाहिए। एंड दे डू द पीयर रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट्स हाफ ईयरली, ठीक है। Okay. तो एटलीस्ट एक बेस आपका उन्होंने कर दिया। बात आती है मैथोलॉजी की। मैथोलॉजी में देखिए वो गाइडलाइंस इशू कर सकते हैं, ठीक है, वो नंबर्स को कभी कमांड नहीं कर सकते डीसीएफ के, कि हाँ डेफिनेटली दे कैन, जो अथॉरिटीज है जैसे सेबी हो गया, वो दे कैन कॉल यू फॉर द जस्टिफिकेशन आपने ये किस बेसिस पे लिया। लेकिन वो कभी मैथोलॉजी, क्योंकि सब्जेक्टिव मैटर है ये बहुत ज्यादा, तो दे कैन गिव द ब्रॉडर गाइडलाइंस, बट दे कैन नॉट गो इनटू द डिटेल्ड गाइडलाइंस कि हाँ ठीक है वो कभी होगा देखेंगे फ्यूचर में, बट अभी नियर बाय फ्यूचर में तो नहीं लग रहा प्रैक्टिकली। Okay. So these क्योंकि were आप the आपका queries. आपके सामने बेस्ट एग्जांपल्स हैं, बायजूस की बात करें, बायजूस कोलैप्स हो गया सीधा Yes. 10 Yes. बिलियन डॉलर से। Absolutely. तो Yes. वैल्यूएशन बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज होती है, Right. डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टांसेस, डिपेंडिंग अपॉन इन्वेस्टर्स प्रोफाइल। Absolutely. Absolutely. So any other queries from the participant, then definitely we can take it now. They can put it on the chat box or they can unmute themselves when they speak. Either way. Anyone? I believe no queries, Moiji. Indeed, it's as per my understanding, I well, think there is a query from Anuj ji. Anuj He's ji, raising the आपकी hand. तरफ से कोई query है सर? अनम्यूट करना पड़ेगा अनुज जी आपको। I request the admin to please unmute Anuj sir. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Especially thanks to Abhinay ji as he allowed me to join this program, and Mohit ji, really a mind-blowing and good session. You just compose everything, all aspects of, means every area you just touched, and you make us understand how to move with this valuation. One of my query, which from a long time I am just
chasing how to get the answer of this right thing. Rule 11 EUA says about valuation, income tax section rule 11 I'm talking about. Valuation can be done by a chartered accountant also. And many times, what the corporate clients are believing and making us argue that why not this chartered accountant valuation will work for getting share transferred. So, can we have something to counter this question of the people? Why only उसमें ना अब RBO report or merchant banker? Because just I'm completing in one more minute only हाँ what जी, my understanding and experience over that. ओके, Some cases income tax during assessments department is not accepting chartered accountant valuation as well as valuation done by RVO also. They are only relying and asking for valuation done by merchant bankers, especially in case of income taxes assessments. So far as valuation done by registered valuer, it is the requirement as per the Companies Act. But so far as my experience is concerned, I didn't get any kind of notice or any kind of valuation report submission to ROC or MCA department. It was never asked. It is our choice or it is mandate that during filing of PS3 we can submit, we can attach that report along with the allotment form. But so far as department question is concerned, I didn't found anything from MCA asking for RVO report. So how can we make society understand that this RVO report is mandatory in this scenario? Next to Department of Income Tax is not accepting the report issued by registered valuer. This this is my basic question to you. If you can give me some light over that. ठीक है, मैं ब्रॉड ब्रॉड बता देता हूँ इसमें। देखिए, कंपनीज एक्ट में तो रजिस्टर्ड वैल्यू लिखा ही हुआ है, तो पैस थ्री में मैंडेटरी जानी ही जानी है, तो उसको हम अवॉइड ही नहीं कर सकते आज की डेट में। तो क्योंकि पैस थ्री जो पहले था, तब तो उसमें हम ऑप्शनल था कि अटैचमेंट करे या ना करे, बट सिंस द टाइम की वहां पे डिटेल आई तो डालनी मैंडेटरी हो गया। कमिंग टू Right. द पॉइंट ऑफ 11 यूए, ठीक है। 11 यूए में वर्ड जो यूज है, अकाउंटेंट वर्ड यूज है एंड मर्चेंट बैंकर टर्म यूज है, ठीक है। तो वहां पे रजिस्टर्ड वैल्यू का कोई जिक्र नहीं है, तो रजिस्टर्ड वैल्यू की रिपोर्ट तो काम कभी करेगी ही नहीं। अब इसको दो हिस्सों में सेग्रीगेट करते हैं, वन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, वन फॉर द फ्रेश इशुएंस। जो ट्रांसफर है, ट्रांसफर को अगर ट्रांसफर वाला क्लॉज आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें कहीं वैल्यूएशन रिपोर्ट की बात ही नहीं करता, ना मर्चेंट बैंकर की, ना सीए की। वो रिपोर्ट कंपनी को लेनी भी नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि जो आपकी वैल्यू है उससे ऊपर ट्रांसफर करना है आपको, उससे नीचे नहीं करना, ठीक है। कंपनियां रिपोर्ट वॉलेंट्री बनवाती हैं, ठीक है। वो इसलिए बनवाती है, कल को इनकम टैक्स का केस लग गया तो दिखाने के लिए एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ठीक है। और सिंस वो कहीं पे बात नहीं करता कि आपको किससे लेनी है किससे नहीं लेनी, तो यू कैन गो फॉर द सीए रिपोर्ट, क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए ही नहीं एज पर लॉ, तो नहीं सर, बट फॉर असेसमेंट ट्रांसफर के फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर, सर फॉर असेसमेंट के द टाइम पर बट दिस प्रॉब्लम इज रेगुलरली कमिंग. At least I got 3-4 assessment cases where client asked for merchant सर banker इस केस report में क्या, only. इस केस में क्या, इस केस में ना मैं 11 के मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट वर्डिंग भी दे सकता हूँ ओवर द ऑफलाइन सेशन कि कैसे आप रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका बता रहा हूँ उसका तरीका क्या है ब्रॉडर। कि आप 11 का वो पर्टिकुलर रेफरेंस क्लॉज दीजिए कि एज पर लॉ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, एंड इफ यू नीड द वर्किंग वी हैव दिस वर्किंग ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चार्टर। Right, sir. Do you hope that the synergy between these two companies act and income tax act will ever come, or anything is at the point सर of देखिए, agencies देखिए like बेसिकली क्या है जो आप, ICSI? मैं एक बार Please, इसका मैं आपको एक बार आंसर पूरा कर देता हूँ sir, जो आपकी क्वेरी थी, ठीक है, sir. उसके बाद आता हूँ। तो अब बात आती है, एक तो ये हो गया ट्रांसफर का पार्ट, अब आता है फ्रेश इश्यूएंस का पार्ट। Right. फ्रेश इश्यूएंस में अगर आप डीसीएफ मेथड कर रहे हो, ठीक है, तो मर्चेंट बैंक का कंपलसरी है। बट अगर आप बुक वैल्यू लगा रहे हो, तो आप उसके इसमें चार्टर अकाउंटेंट का ले सकते हो, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि फ्रेश इश्यूएंस नॉर्मली क्या कहते हैं डीसीएफ मेथड पे ही हो रहा होता है, क्योंकि कंपनी एक्ट में भी डीसीएफ पे वैल्यूएशन बन रही होती है। सर अगर अलाउ करें अभिनय जी तो एक पर्सनल क्वेरी और डिस्कस कर लो. बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत टाइम है यस, हमारे पास। यस। हाँ, थैंक आपका यू. अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देता हूँ, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। जी. सिनर्जी देखिए धीमे धीमे आ रही है, अथॉरिटीज अलग अलग है। एआईएफ में, एआईएफ की जो वैल्यूएशन होती थी
वहां पे मर्चेंट बैंक का लिखा हुआ था, तकरीबन 1 1.5 साल पहले चेंज करके आरबी और आरबीई कर दिया है, रजिस्टर्ड वैल्यू एंटिटी कर दिया है। अब चूंकि सारी अथॉरिटी अलग अलग है, आपको भी पता है इंडिया में सिस्टम कैसे चलता है, सब जगह से चेंज करवाना आसान नहीं है। अब एक्ट एक्ट जब पास हो जाए तो शायद वो सबको यूनिफॉर्म एक साथ कर देता, लेकिन एक्ट कब पास होगा भगवान जाने। तब सब अथॉरिटीज को अलग अलग करना है। अब जिसको जब जब टाइम मिल रहा है तो वो कर रही है अपने हिसाब से, रिप्रेजेंटेशन जाती रहती है वहां पे, तो वो कर रही है अपने हिसाब से। सर एक पर्सनल क्वेश्चन क्या है कि अभी मैं एक हाँ कंपनी जी। ट्रांसफर कर रहा हूँ और वो कंपनी हाँ लॉस मेकिंग कंपनी है, बट हाँ उसमें जी। कुछ ऐसे टेंडर्स की अवार्ड हो गए हैं जिससे आने वाले फ्यूचर में उसकी कुछ वैल्यूएशन बेटर हो जाएगी। ठीक है। अब द corporate CFO who is transferring this company to us, we are the buyer side, दे आर क्लेमिंग कि मेरा जो सर्टिफिकेट है सीए का उसमें कुछ माइनस वैल्यू आ रही है 36 पॉइंट समथिंग रुपीज पर शेयर का, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू है। एंड ठीक वेयर है। द शेयर इज ट्रांसफरिंग एट अ प्राइस ऑफ 753, ठीक है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन गेटिंग एनी काइंड ऑफ रिपोर्ट। सो विल हाँ सर, दैट वो नहीं, पता क्यों नहीं सर्टिफिकेट लेंगे, ऑफ पता क्यों नहीं चार्टर्ड लेंगे। अकाउंटेंट वर्क इन दिस? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि वो रिपोर्ट पता है क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 11 में बोलता है बुक वैल्यू से नीचे नहीं करना आपको। ठीक है। और मैंने जो अपनी स्लाइड्स में बताया कि जहाँ पे स्टैच्यू में डिफाइन हो गया, वो तो मेथड वही बन गया जो लॉ में डिफाइन है, मेथोलॉजी। अब जो फ्यूचर में टेंडर आएंगे उसकी कहीं पे बात करता नहीं है वो, जो 11 है ना, क्योंकि फ्यूचर कंटीजेंट हो गया। कंटीजेंट एसेट लायबिलिटी की बात करता नहीं है उस 11 के जो बुक वैल्यू में जो मेथोलॉजी डिफाइंड है। तो बुक वैल्यू से ऊपर कर रहा है, उसको पता है कि कभी वो फंसना तो है नहीं केस में, क्योंकि नेगेटिव बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू से ऊपर बहुत बहुत कर रहा है। तो पूरा उसके पास क्वेश्चन है दिखाने के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट काम करेगा, लेकिन कंपनी की अपनी कॉल है कि वो चाहिए उसको नहीं चाहिए रिपोर्ट, क्योंकि 11 में साफ साफ है कि वहां पे मैथोलॉजी डिफाइंड है, और वहां पे कहीं पे भी शेयर ट्रांसफर के लिए रिपोर्ट की बात कहीं नहीं लिखी है। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन क्या था कि जब हाँ जी। 11 हुए तो एक पार्ट हो गया, जब हाँ मैं जी। शेयर ट्रांसफर कर रहा हूँ और ट्रांसफर में जब ट्रांसफर डीड्स बनाऊंगा या मैं उसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर डीमेट से भी करूंगा, देन द हाँ जी। वैल्यू व्हाट आई एम गोइंग टू डिपिक्ट इन माय रिकॉर्ड्स इज 753 पर शेयर। राइट। तो राइट। ट्रांसफर का एक्चुअल ट्रांजेक्शन तो 753 पे हो रहा है, और एग्रीड। 753 का कोई बेस प्राइस जो है, हाउ दिस फिगर ड्राइव्ड, उसका तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन उसका होगा ही नहीं उसका कभी कोई भी। उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं वही कह रहा हूँ कि बेसिकली चैलेंज के यहाँ पे आता है, इनकम टैक्स में आता है। ठीक है। इनकम टैक्स में कहता है कि जो आपकी बुक वैल्यू है उससे ऊपर होना चाहिए, तो सर उससे ऊपर इनकम चाहे टैक्स आप तो 1 लाख। इसलिए कोई कंसर्न नहीं है क्योंकि उन्हें तो टैक्स मिल जाएगा, बुक वैल्यू से मैं मल्टीफोल्ड हाँ, हायर वैल्यू पे मैं बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसफर आप ले रहा हूँ। उससे ऊपर जितना भी करेंगे उनको टैक्स मिलना है, तो वो कभी क्वेश्चन नहीं करते इस चीज को। वो क्वेश्चन कभी करेंगे नहीं। हाँ बट जी। द सिस्टम व्हाट गोइंग इन अ सोसाइटी, इज दिस गुड फॉर ऑल ऑफ द प्रोफेशनल लाइक अस? बिकॉज कोई बेसिस तो है नहीं उसको 753 या एक्स फिगर कोई भी पकड़ लेते हैं। जैसे अभी डीसीएफ में भी हम, आपने बोला कि एक असेसमेंट ही होता है, तो कई सारी कंपनीज में तो कोई असेसमेंट ही नहीं हो रहा सर। सिर्फ सर प्रमोटर मैं आपको आपको एक वर्ड दे मैंने देते इसका हैं कि इसको जो एक्स प्राइस पे वैल्यूएशन कर दो, और प्रोबेबली, सॉरी आई एम सेइंग बट, आरबीओ हमारे ही प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं या मर्चेंट बैंकर से भी वो वैल्यू ड्राइव होके मिल जाती है हाथ पे। तो इस सर एक्सरसाइज मैंने का इसका होना या नहीं होना, मुझे लगता है कोई बहुत एडेड एडवांटेज वैल्यू एडिशन जैसा तो कुछ नहीं है, कंप्लाइंस नहीं 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 अभी नहीं, एक मैं बर्डन इससे कंप्लाइंस थोड़ा होके सा रह गया है सर। मैं थोड़ा सा डिफर करता हूँ, पता है क्यों। जी क्योंकि ना क्या, अगर हम 2016 की बात करें, 15 में जब हमने हमने रिपोर्ट इशू करवाते थे, मैंने भी करवाई है। जी ठीक है, जब मैं यूनिवर्सिटी प्रैक्टिस में आया था तो वहां पे सिर्फ 2 पेज रिपोर्ट मिल जाती थी, उसमें वर्किंग शीट भी नहीं होती थी। जी उसमें सिर्फ एक हार्ड कोटेड प्राइस होता था कि हाँ ठीक है, ये इसकी वैल्यूएशन हो गई। तो जी एटलीस्ट आफ्टर दीज रेगुलेशंस केम इन, ठीक है, इस इन रेगुलेशंस का ना आने का बेसिक मेन मेन तो पर्पस था आईबीसी को सपोर्ट करना। पर इवन आईबीसी की मैंने कुछ कुछ जो सेमिनार्स अटेंड किए हैं ना, वो कहते हैं कि हम आईबीसी वाली, क्योंकि आईबीसी इज लुकिंग इनटू द इंसॉल्वेंसी केसेस, ये तो उनके ऊपर पड़ गया एक तरह से कह सकते हैं हम, कि जब तक वो अथॉरिटी सेपरेट अथॉरिटी नहीं आएगी तब तक उनको मैनेज करना है। तो दे आर मोर कंसर्न अबाउट द आईबीसी वैल्यूशन, उसके उसको ज्यादा वो सुपरवाइज करती है, पैनलाइज भी करती है वो बहुत सारे आरबीज को। ठीक है। तो आज की डेट में कम से कम इंडिया इज लीडिंग, मैं बोलूंगा वैल्यूएशन में, रीजन भी कि हमने कम से कम मैथोलॉजी या जो रिपोर्ट्स के फॉर्मेट्स हैं वो स्ट्रीमलाइन कर दिए हैं। मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी डेनमार्क के क्लाइंट की, ठीक है, जो कि उसने डेनमार्क की कंपनी के लिए ली थी, एंड वन ऑफ द बिग नेम्स इन इन आवर इंडस्ट्री हैज इशूड द रिपोर्ट। ठीक है, 2 पेज की रिपोर्ट थी वो। तो इंडिया इसमें बहुत अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। हाँ, जो प्रैक्टिकल आपने चैलेंज बोला, देखो वो मार्केट का चैलेंज है कि उसको कैसे किया जाए, वो हाई लेवल का चैलेंज है कि कैसे, जब तक अथॉरिटी सेपरेट बनेगी नहीं वो उसको सॉर्ट करेगी नहीं, क्योंकि डील वैल्यू
क्योंकि लॉ लॉ आप समझिए लॉ क्या कहता है। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि जो डील वैल्यू, सपोज मैं आपने एज ए रजिस्टर्ड वैल्यू वैल्यूएशन दे दी 100 रुपए की, ठीक है, क्या इट इज मैंडेटरी कि वो उस वैल्यू से ऊपर होगी डील? इट कैन बी बिलो दैट। 90 रुपए भी हो सकते हैं भाई। पानी की बोतल है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, 10 रुपए की है, ठीक है, अगर मैं डेजर्ट में बैठा हूं तो मेरे लिए उसकी वैल्यू अलग होगी, मैं अगर कहीं झरने के पास बैठा हूं तो मेरे लिए वैल्यू अलग होगी। तो इसमें हमारी लॉ की भी बहुत दिक्कत है। लॉ कहता है कि आप इससे नीचे नहीं करोगे नहीं जो सर, रजिस्टर्ड वैल्यू ने दिया है। बात तो ठीक है भाई आपकी, आपका बल्कि वैल्यूर जो आपका जो वैल्यूर एक वैल्यू दे रहा है, सपोज उसने FEMA में बहुत चैलेंज आता है, एक एक पैसे की पीछे पड़ जाते हैं वो। 100, मैंने वैल्यूएशन दे दी 101 रुपए 10 पैसे, और अगर डील हो गई 101 रुपए 9 पैसे में भी ना, उसको वो फिर चैलेंज आ जाता है वहां पे FEMA में। मतलब ये आप प्रैक्टिकल सिनेरियो हुए हैं ये, कि आप ठीक एक कह एक रहे हैं पैसे सर। के पीछे एक एक पैसे के पीछे FCG पे रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें जब तक वो स्टैच्यू ठीक नहीं किया जाएगा ना, जब तक वो कंपनी एक्ट में जो लाइन लिखी हुई है नॉट बिलो द फेयर वैल्यू, जब तक इसमें कुशन नहीं दिया जाएगा, एटलीस्ट कुशन तो दो 10% 20% का कुछ का। क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आया, उसने कंपनी को आंक लिया कि 100 रुपए की है, और जो जो बायर डील कर रहा है वो बेवकूफ है, वो 90 रुपए में डील कर रहा है? तो ये हमारे स्टैच्यू की प्रॉब्लम सर, ये प्रोफेशन की प्रॉब्लम नहीं है। सर अच्छा, इसे एक और लाइट से डिस्कशन करते हैं कि जैसे हाँ जी। वैल्यूएशन वैल्यूअर ने वैल्यू रिपोर्ट दे दिया और हाँ बीइंग जी। कंपनी सेक्रेटरी मुझे अलॉटमेंट करना है, तो हाँ जी। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एडिशनल मुझे टेक केयर करना चाहिए, जिससे कि वो वैल्यू मुझे पता है कि ये ठीक नहीं है, जस्ट हम्म। प्रमोटर हैज गेट दिस वैल्यू डन as per their wish, no basis of that valuation which can drive the value of per share, which I am also knowing being professional there. What additional measure I should take to just make my responsibility limited in that case? Because ये आने वाले टाइम में तो पक्का कहीं ना कहीं, आज नहीं तो हो सकता है 2 साल बाद 3 साल बाद, जब एआई ड्रिवन फॉर्मूलाज लग जाएंगे, रेगुलेशंस आ जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन होंगे। हाँ जी। हाँ जी। हम आज की डेट में तो ऐसे बस कैरी कर रहे हैं कि ठीक है, वैल्यू ने रिपोर्ट दे दिया, एक्स फिगर को रिपोर्ट पे वैल्यू दे दी, उस पे हम शेयर ट्रांजेक्ट भी करा दे रहे हैं, अपना सर्टिफिकेशंस भी दे दे रहे हैं, PS3 भी सर फाइल इसमें कर ना दे रहे एज ए हैं, तो इसमें प्रोफेशनल कुछ जो, एडिशनल हमको करना चाहिए क्या? मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है कि इवन सी इंस्टीट्यूट हैज पब्लिश्ड ए PPT, पीए रिव्यूज का कंपाइलेशन था कि जो हम उन्होंने गाइडलाइंस दी हुई है, ठीक है, उसमें से रिपोर्ट्स में क्या क्या पैराग्राफ मिसिंग है एटलीस्ट। हमें सबसे पहले तो ना यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए कि जो पीयर रिव्यू के कमेंट आते हैं, जिससे भी हम रिपोर्ट ले रहे हैं, एटलीस्ट वो सारे पॉइंटर्स उस उन रिपोर्टों में हो कम से कम। एटलीस्ट बेसिक्स, हमें बेसिक्स से पहले स्टार्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट जो गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे इकोनॉमी ओवरव्यू देना है, इंडस्ट्री ओवरव्यू देना है, या कैवियर्स डिफाइन करने हैं, तो बहुत सारी रिपोर्ट जब मैं देखता हूँ, गूगल करके भी देखता हूँ या निकालता हूँ, तो जो बेसिक गाइडलाइंस डिफाइंड है ना, जो पीयर रिव्यू की कमेंट्रीज है, वो भी वहां पे इंकॉर्पोरेट नहीं होती। तो सबसे पहला स्टेप है कि कम से कम हमें उसको अगर प्रॉपरली हम करना चाहते हैं, तो हम उसको पीस ऑफ पेपर ना समझे, हम एटलीस्ट वैल्यूअर को बोल के अपनी एड ऑन कमेंट दे के वो सारे पॉइंटर्स को इनकॉर्पोरेट कर पाए। फिर इसके बाद आती है सेकंड चीज जो आप कह रहे हो, अगर आप अपने अपने कमेंट से देखो, जनरली क्या होता है, प्रैक्टिकली तो ये होता है कि वो ऑलरेडी नेगोशिएटेड होती है प्राइस। प्रैक्टिकली बात करूं तो मैं, ठीक है, वैल्यूएशन रिपोर्ट बाद में बन रही होती है कंप्लायंस पर्पस के लिए, तो जनरली आप अगर आप उसके पास जाओगे भी तो वो सुनेगा नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि क्लाइंट इस तरह का है जहां पे अपने फीडबैक देके उस वैल्यूएशन रिपोर्ट को देख के उस प्राइस को बढ़वा सकते हैं, तो बाय नॉट। आपका कमेंट सुन रहा है क्लाइंट, आपकी आप अगर वैल्यू एडिशन दे रहे हो, आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो ही विल ऑलवेज लिसन टू यू। और जनरली जितने भी, जो CS वाला पॉइंट बोला, जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना, उनको कंप्लाइंस कंप्लाइंस सुनने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं है, दे वांट टू टॉक अबाउट द बिजनेस ओनली। ठीक है, एग्जैक्टली। बिजनेस की बातें करो, उनको अच्छा लगेगा, आपका भी बिजनेस बढ़ेगा, उनका भी बिजनेस बढ़ेगा। दे आर कंप्लाइंस कंप्लाइंस के बारे में कहता है ठीक है हो जाएगा यार कोई इतना वो नहीं है। दे आर वेरी लेस इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। बिजनेस की बात करो, वहां से रिलेशनशिप भी बढ़ता है, काम भी बढ़ता है। तो अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, बट एज ए बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा हमें, अगर हमें अपने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाना है। राइट सर, आई एम डन सर। Thank you, Anuj sir. I know there are many practical difficulties in this valuation domain. And as rightly said by Mohit, that once we have a separate regulator for it, then definitely this valuation scope of for valuation and this valuation domain will touch a new heights. And yes, as a company secretary, we are on a right track, and this registered valuer domain is still need to be explored. There, I can say, there are many limited company secretaries who have become RVs and who are actually issuing the reports, right?
So I request, like there are many participants here, if we can give a push and motivate our youngsters, right, and make them aware about these valuation domain, about this registered valuer, and they can start preparing for it. Because again, in सर मैं today's इसमें time, we are इतनी ही seeing ऐड a ऑन lot कर of सकता हूँ कि IPOs. इसमें काम की कमी नहीं है। आप अपनी सीट से कितना उठ Yes, सकते yes, हो, yes. जाके कितने लोगों से मिल सकते हो। मैं नहीं उठ पाता बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल. So फ्रैंकली it's स्पीकिंग। as on date, मतलब it's यू विल बी गेटिंग वन रिपोर्ट ईच डे, अगर आप अपनी सीट से yes, yes. हट सकते हो और आप अपनी पीछे बैकएंड टीम बना सकते हो। Absolutely, absolutely. So definitely, I know many of the company secretaries who are doing it, and they are really doing it good, right? So yes, it's a domain which can be explored, and new heights can be reached. But it totally depends on us how we want to take our future further. So I believe we are coming to an end of this fruitful and insightful webinar. So thank you, Mohiji. Thank you for your थैंक यू सो मच सर। sharing your practical experiences, insight, and touching upon the this complete valuation domain. And yes, it will be a fruitful, or you can say, and very opportunistic domain for the company secretaries. But it depends totally on their skills and their hard work. So again, I believe before closing this Maybe seminar, there is a just one small, thing. yeah, Yeah. yeah, If anybody needs to discuss anything one to one, you may please note down my mobile number. I am much more active on WhatsApp rather than mails. तो आप कुछ भी क्वेरी पूछेंगे, आपको कुछ भी टेक्स्ट भी चाहिए सर, अनुज जी आपको भी जो टेक्स्ट चाहिए रिप्लाई के लिए, तो आई विल गेट इट ड्राफ्टेड एंड विल शेयर विद यू। definitely, definitely. So Mohit ji का number display हो रहा है already, email ID है. So I request if anybody want to have any query, they can connect with him one on one. And yes, before putting an end to this very insightful webinar, Mohit ji, a small token of appreciation from our side. There's a small थैंक यू सो मच certificate, सर। right? So this we are sharing it virtually, and definitely we'll be sending the hard copy to your address, right? So thank you for contributing. Thank you for sharing your sparing your time, and yes, motivating all of us to look further, look beyond Companies Act. There are a lot to achieve, and definitely we can do it. And yes, thank you to all the members who have taken time on this busy day. Friday is again a busy day. In Delhi, Gurgaon, it's weekend. It's weekend touches there, but definitely not in other cities. We all are hardworking professionals and spending time on this busy day in this busy afternoon. And definitely, very soon we are coming with many more webinars. And labor law, I have received many messages, queries regarding that when we are doing it on new labor codes, on DPC, Data Protection Act. Definitely, we are doing it, and if anybody who is willing to share their knowledge can let us know, and we can definitely take it forward. And Anuj sir, again, I requesting from this platform. We are looking forward to you as a speaker for the MSME, because I know you had a great experience in that. So definitely we are coming very soon with that webinar also, sir. Thank you. So thank you everyone. Thank you for joining. And Mohit bhai, thank you. Anuj sir, सो thank you मच। for making it more insightful at the end. And yes, stay connected. Let's keep growing, keep shining. Thank you.